वहाँ पे अच्छा। जन्माष्टमी का उत्सव बहुत बड़े रूप में होता है। ओहो, वेरी गुड। I think Elsie has come. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। वो आई नहीं है। Good afternoon, everyone. मैं 21 नवंबर को मैम के पास जा रही हूँ। Yay! ये किसने बोला? एंजल को मिलने जा रही हूँ। कंग्रेचुलेशन। Enjoy, have a very good time. Yes, my children are there. My new bahu is there. Wow, Superb. that's amazing. That's great news. Yes, it's November 21st, 22nd. Okay, perfect. Yes. Yes. Very nice. So you have to come here, okay? I mean, it's a 2 hours flight. I inquired that from my son. It's a 2 hours flight from this thing. Yes, 2 hours flight. Yes, So, I booked the don't know flight how it is. yesterday, so I know for my friend actually to New York, which is quite very near to your place where you're going. Yeah, New York is a drive for about 4 hours, 3 hours. Oh something. yeah. Mm. न्यूयॉर्क में तो मेरा ब्रदर इन लॉ भी है, न्यू जर्सी में rather. So I Okay. will be going there, yeah, driving there. But driving is okay, 3 hours. Okay. And drive, I asked my son. He said, "Mom, it's about 10 hours. Okay. Your house, your place." Drive करके हाँ 8-9 hours होगा. Yeah. Yeah. So I don't Yes. know. पर आपका इस साइड अगर आना होता है नवंबर दिसंबर, so you let me know. Actually, I came in when March. Your place I came in March. Okay. So I'm होता है ना कभी visited वॉशिंगटन March. में काम है आपका या कुछ तो आप बताना. हाँ मैं वॉशिंगटन में वो चेरी ब्लॉसम देखने के लिए गई थी मार्च में. What is that? That's a festival. If you stay until then you will be able to see in March. I'll be back on Jan 6th. That is too low amount of time. You should have stayed for 3-4 months. No. Then my daughter's here and my husband's business and then my daughter's job and also. Okay. All right. So yeah, let's see. We will talk on the phone. So let's start. Yes. Come on, faster. Yes, faster. Let's do our peak stage. Olympic race and you are winning. Standing in the same position. Just I am move your excited hands to meet faster you, and Mamta. faster. Okay, so Hopefully, let's start. universe will make something arranged. 1, go. Come on, run. Yes, let's. Run faster. क्या बोला आपने अल्फिया मैंने सुना नहीं. Faster. Universe कुछ करेगा मिलने के लिए. Faster. Yes. Come on. Faster. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on. Fast. Still faster. Yes, faster. Come on. Faster. Go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. Yes, Very nice. I am the winner. And We you say all to are the yourself, winners. I am the winner. I'm the winner. I'm the winner. Yes, thank you. So now, repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes.
Come on, faster, faster, faster. Yes. Come on, fast, fast, fast. You can do it. Come on. Just a second. faster, still This is faster, also yes. almost end. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Yes, I'm the Come on, winner. I'm faster, the winner. faster. Yes. Yes, Yes. yes, yes. Come on. Yes, Yes. I'm the okay. winner. I'm Wonderful, successful. wonderful. Just stop, stop, stop. Just a stop. second, Thank I'll you, be thank you. there. And now Yes. say to yourself, yes, I am the winner. Yes, I am the winner. I am the winner. I am the winner. And now we say to ourselves, I can. Okay, repeat. I can. I will. I must. I can. I can, I will. will, I I must. must. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you so much. Yes. Let's do some of these exercises too for our spine. Okay, so let's start. आज वापस हम वो वाला मेडिटेशन करते हैं जो हम विजुअलाइजेशन के लिए करते हैं, ठीक है? उसमें बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड भी आ जाता है, तो विल कंटिन्यू 7 minutes वाला 17 मिनट्स वाला जो है ना, 17 के 7 यानी वो मेडिटेशन 17 मिनट्स का है। अच्छा वो 7 वाला करवा लीजिए ना, उधर करना है, वैसे भी होमवर्क है उसका। होमवर्क है, अच्छा। I will see the मनी recording. के तो ऊपर इसमें आ जाएगा वो। मनी के ऊपर जाना है। मैम ने बोला 7 + 1 8 हो जाएगा, तो 17 हो नहीं, जाएगा। 7 + 1 8 इसके लिए होता है कि 8 आप चालू रखो तो 7 तो हाँ। कंपलसरी हो ही जाएगा। आप 7 से पहले ये तो 7 भी कर सकते हैं ना, इफ यू आर परफेक्ट ऑन द टाइम, दैट्स ओके। और 8 भी कर लो, तो आज वो करवा लो ना 7 मिनट्स का। आश्विन मैम की क्लास का भी विजुअलाइजेशन है ललितिया जी। हाँ, तो उसमें अपन मुझे वो तो करेंगे। पता भी नहीं, मैंने तो मनी के नहीं ऊपर, रिकॉर्डिंग देखा, मैंने ऐसे ही सोचा कि आज मनी के अंदर से ऊपर ही करेंगे गाइडेंस साथ में। आया कि आज विजुअलाइजेशन वाला मेडिटेशन करते हैं। हाँ, लेकिन 7 मिनट्स विजुअलाइजेशन वाला करते हैं आज। मैम ने बोला वो। हाँ, 7 मिनट्स फॉर मनी। No, but I am just putting my meditation from my channel. So that is 17 minutes. वो सब आ जाता है उसमें. It's not only for one thing or money only. नो, ओके, नो प्रॉब्लम, हम 7 उसमें कर लेंगे अपने आप। हाँ, अपने आप से कर लेना. Yes. Just sharing the screen. Ma'am, is there any meditation in YouTube for 7 minutes, like for money? We can I don't know. later on. We You can have to find it out. Okay, okay, we'll see. Okay, okay. क्योंकि जितना रोगे इतना रिलीज हो जाएगा अंदर से. Yes. वो बहुत जरूरी. Just a second. Yes. Okay. Just a second. मैंने वो रखा बट आया नहीं वो मेडिटेशन. 1 सेकेंड. प्लेलिस्ट के अंदर होना चाहिए. Okay, here. So I am sharing the screen with you all, and you all do it together. Only placed on the ground, hands facing the heavens above. मैंने एक्चुअली वो साउंड नहीं शेयर किया था. जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन. साउंड सबको नहीं सुनाई दे रहा होगा ना? हम पहले विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। Yes, Yes, ma'am. yes, we are doing this meditation right now. It's just 17 minutes, and then we will continue with our book reading. Yes, ma'am. आवाज नहीं आ रहा.
सो सब पहले अच्छे से बैठ जाइए एकदम और स्टार्ट डीप ब्रीदिंग, बिकॉज इसमें मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, मुझे थोड़ा म्यूजिक बदलना पड़ा था इनिशियली. तो एनीवेज यू स्टार्ट डीप ब्रीदिंग. लेट्स स्टार्ट डीप ब्रीदिंग. Breathe in the gratitude. Breathe in positivity. Breathe out all negativity and negative thinking, limiting beliefs. We are here to achieve. We are here to live a meaningful life. So let's just get that all in. Now I will start the meditation. Life is truly magical and miraculous. Life is the biggest blessing which happened to me. I feel so blessed. I trust the process of life. Whatever comes my way, I accept it and I surrender myself. I accept myself exactly the way I am right here, right now. मैं जो भी हूँ उसका सम्मान करती हूँ. I honor who I am. और जो भी मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको भी मैं उसी तरह से स्वीकार करती हूँ जैसे वो है. And I'm always safe because I know life has my back, universe has my back. अभी हम इमेजिन करेंगे जो भी हमारे एरियाज हैं उसमें हमारे ड्रीम्स कंप्लीटली फुलफिल हो चुके हैं. और उस टाइम पे हम कैसा फील कर रहे हैं, कितना जॉय फील कर रहे हैं, किस तरह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे ड्रीम्स कंप्लीट होने के बाद, वो सब चीज़ें हम उसको होते हुए फील करेंगे और उनके लिए जितना हो सके उतना धन्यवाद देंगे, ग्रेटिट्यूड फील करेंगे. सो लेट्स टेक वन बाय वन अपने सभी एरियाज को हम लेंगे. जो जैसे सबसे बड़ा एरिया हमारा है कि हमारी खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करना, कि किस तरह की पर्सनालिटी हमें चाहिए, किस तरह के पर्सन हमें आगे 10 साल के बाद हम अपने आप को एनविजन करते हैं या 5 साल के बाद, तो किस तरह से हम अपने आप को बनाना चाहते हैं उसको हम एनविजन करेंगे और उसको फील करेंगे कि वो ऑलरेडी हो चुका है. सो लेट्स इमेजिन, लेट्स विजुअलाइज. आप सबको ये इमेजिन करना है. अपने बारे में जो सेल्फ लव है उसको भी आपको महसूस करना है. किस तरह से आपने अपनी खुद की लाइफ बदल दी पर आपने ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत कंट्रीब्यूट किया. तो ये सब आपको इमेजिन करना है. आप अपने आप को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट देख रहे हो, जो खाली देना ही ज्यादा जानती है, हमेशा देती रहती है, ऐसी पर्सनालिटी.
एंड साथ साथ में यू आर सो कमिटेड टू योर ओन ड्रीम्स. आप इतनी बड़ी हस्ती बन चुके हो तो भी आप कंप्लीटली कनेक्टेड हो मदर अर्थ के साथ. कोई अहंकार नहीं, कुछ नहीं. यू आर सो हम्बल, यू आर सो काइंड टू अदर पीपल, यू आर सो compassionate. Just imagine yourself and feel that it is true. जो भी आपको करना, आपका जो भी लाइफ पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है. And you are feeling so amazing. You are celebrating with other people. And let's thank our Almighty for all these things. You are expressing yourself creatively with your unique talents, with your unique strengths, and you are expanding so fast, growing so quickly, because you love yourself, you respect yourself, and you respect others as well. अभी हमको हमारी हेल्थ के बारे में हम विजुलाइज करेंगे कि हमें हेल्थ कैसी होगी, हमारी कैसी चाहिए हमें. अगर वो फुलफिल हो चुकी है तो हमें कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है. हाँ, हम माउंटेन चढ़ सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, ये वो सब कुछ कर सकते हैं. हमारे पास इतनी एनर्जी है. वो एजिंग भी हो रही है तो हम उसको बहुत ग्रेसफुली ले रहे हैं. वी आर हैप्पी अबाउट कि हाँ, मैं बढ़ रही हूँ, मैं आगे वाइज होती जा रही हूँ जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ. एंड आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ. जिस तरह की आपको बॉडी चाहिए, स्लिम चाहिए, जैसे भी चाहिए, आप उसको इमेजिन करो. वो फुलफिल हो चुकी है तो कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको. You are glowing, you are radiant. You are so charismatic with your positive attitude and positivity. You are a magnificent being of life. I am magnificent. I am the greatest soul ever born on this planet. Thank you, God, for this amazing body and health. Vitality and energy. Now let's move on to our relationships. कि जो भी हमारी रिलेशनशिप में हमें जैसा चाहिए, अगर वो हो चुका है, वो हमारे ड्रीम्स फुलफिल हो चुके, तो हमें कैसा फील हो रहा है. आपके हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, जो भी आपके ड्रीम्स है, पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स इन लो के साथ, सभी के साथ जिसी भी तरह के आपके ड्रीम्स है,
वो फुलफिल हो चुके हैं, कैसा लग रहा है आपको? यू आर डांसिंग विद जॉय। खुशी से झूम रहे हो, नाच रहे हो। आपके सभी रिश्तों में एक ईज आ चुकी है, स्मूथनेस आ चुकी है, और वो भी ऊपर ऊपर के रिलेशंस नहीं है, दिल से जुड़े हुए रिलेशंस है। Thank you, God, for such beautiful relations in my life. And I'm attracting more and more satisfying relationships in my life. जिस तरह से आपकी बॉन्डिंग है, जिस तरह से इतनी खुशी से आप अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, thank you God. आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं, उसको अभी इमेजिन करके आपको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देना है। फाइनेंस यानी जितना भी मनी आपको चाहिए, पर क्यों चाहिए, क्या क्या चीजें करनी है आपको मनी के साथ, वो सब आपको विजुअलाइज करनी है, और जितना हो सके उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है। आपको मे बी ट्रैवल करना है पूरे वर्ल्ड में, आपको कोई ऐसी चीजें खरीदनी है, बड़ा घर खरीदना है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, जो भी आपके ड्रीम्स है मनी को लेके सब फुलफिल हो चुके हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मे भी आपको डोनेट करना है, आपको किसी की मदद करनी है, नीडी लोगों की, तो आपको कितना करना है इमेजिन करके आप उसके लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो। देने वाला तो ऊपर वाला ही है। You are giving back to the society. Okay, now let's rub our palms together. Invite this beautiful energy of manifestation, dreams, and let's bless all our body parts. One by one. Conscious, subconscious mind, forehead, eyes, eyebrows, cheeks and chin, nose, mouth, teeth, tongue, ears, neck and throat, shoulders, hands, fingers, upper back, lower back, middle back, hips, हार्ट। थोड़ी देर अपना हाथ अपने दिल पे रख के उसको महसूस करें। लंग्स, चेस्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, किडनीज, गॉल ब्लैडर, लिवर,
hips, knees, thighs, calf muscles, feet, sole of the feet, toenails and toes and ankles. Let's thank trillions of cells in our body who work tirelessly 24/7 to keep us alive, to keep us healthy, energetic. Let's thank all our organs, tissues, fibers, muscles, bones, our kilometers of blood vessels, everything in our body which we might have missed, but we want to thank everything. Skin, immune system. Let's thank our Mother Earth for giving us this beautiful life. Let's thank our life for all the bad and good experiences which taught us something always, and also future experiences that life is going to bring. Let's thank the heavens above. Just open your arms. Thanks the universe, the angels, guardians for their choicest of blessings on you. And let's say out loud, I am open and receptive to all the goodness and abundance in my life. Close our eyes. Oh, very amazing. Yes. बहुत मजा आया, Thank you, बहुत मजा ma'am. आया. Thank you. Yes, this is very beautiful meditation. I always loved Yes. it. मैम बहुत अच्छा था. Yes, yes. मैंने तो कुछ नया ही सीख लिया मैम. 40-45 के ऊपर रहूंगी तब क्या होगा? बहुत ही सुंदर Wow. था. Yes, that is what we need to do. अपने आप को विजुलाइज करना है कि कैसी हमें चाहिए. दूसरी एक दो टेक्निक्स है जो मैप बुक के अंदर दी गई है कि आप अपनी खुद की मूवी देखने जा रहे हो, स्क्रीन के ऊपर नाम आ रहे हैं, आप जैसे थिएटर में जाते ना, पहले कैसा होता था, स्टेज के ऊपर शोज होते थे, राइट, पहले के जमाने में. तो आप ऐसे एक थिएटर में गए हो, आप बैठे हो, वहां पे स्टेज पे आपकी मूवी दिखाई जा रही है. स्टेज पे अनाउंस हुआ, दिस इज द मूवी ऑफ अलिविया कॉन्ट्रैक्टर. फिर वहां पे अनाउंस हुआ, फिर वहां पे आपकी मूवी चल रही है कि आपकी लाइफ कैसी है, द डे इन योर लाइफ, मूवी चल रही है. फिर मूवी में ही बैठ के मतलब आप मूवी देखते देखते आप खुद जा रहे हो. दैट इज मैप बाय व्हाट्स हर नेम, उसका नेम बॉनी लॉरेंसबर्ग. सो उसमें क्या होता है मूवी के अंदर कि आप खुद वो स्टेज के ऊपर जा रहे हो और जो मूवी का कैरेक्टर है यानी आप ही हो, उसमें ही आप चले जाते हो और अपने आप को पूरी तरह से वो उसमें अपने आप को देखते हो. तो दैट इज अनदर टेक्निक. वन मोर टेक्निक इज कि अगर आप ऐसे बन चुके हो, मान लो 5 years के बाद आपने अपने आप को जो विजुअलाइज किया, अगर एग्जैक्टली आप वैसे बन गए हो तो आपका पूरा दिन कैसा होगा. मान लो अभी आपका सपना है कि बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन जाना, ऐसा हो सकता है, या फिर एम्पावरिंग का है कि आप चलो योगा यहाँ पे 2-3 लोग योगा करवाते हैं तो उनका ले लेते हैं कि मान लो आप बहुत ही बड़ी योगा टीचर बन गए. अभी आप इतने फेमस हो चुके हो कि बाहर निकलते हो तो आपको लोग आके बोल के जाते हैं, क्योंकि आपको सब पहचानते हैं, तो आपको लोग आके बोल के जाते कि वाओ सकीना जी या सपना जी या जो भी, जिन लोगों को भी योगा का सपना है, तो वो बोल के जाते हैं कि वाओ आपने तो मेरी योगा से मेरी लाइफ बदल दी है. मुझे इतने सारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुके हैं. यानी इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस सब जगह पे आपको मिल रहे हैं. तो यू हैव टू विजुअलाइज दैट. आई एम जस्ट गिविंग यू अ विजन. यानी हम अपने आप को इतना छोटे दायरे में रखते हैं,
हम खुद के लिए बड़ा सोचते ही नहीं है, बट ऐसा कुछ बड़ा सोचना है अपने आप के लिए। जैसे मे बी आप इतने अच्छे एम्पावरिंग पर्सन हो चुके हो, लोगों को इतना एम्पावर करते हो कि आपको टेडेक्स वाले टॉक में बुलाया गया है और वहां पे स्टेज पे आप सबको एम्पावर कर रहे हो। तो अपने आप को ऐसे देखना है। यानी मान लो टीचर बनने का आपका बहुत बड़ा सपना है, तो अब टीचर भी बन गए, आप प्रिंसिपल भी बन गए, अभी आपकी 3-4 और स्कूल है। बाहर निकलते हो, पूरा दिन आपका कैसा होता है कि सुबह उठ के ही आप यानी यू हैव अ main of your dreams, like in your bed you are rising up next to him, and then you are going, you are thanking the life for beautiful experiences today and everything for whatever you have currently. You are like, ये पूरी दिन की बताती हूँ कि दिन में पूरा आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो। आप जागे हो, आप ये सारा कुछ कर रहे हो, and you maybe if you're a teacher or if you own beautiful different schools, then how will you be behaving in the whole day? कैसे आप बिहेव करते होंगे? आपका एक मिनट बहुत ही इंस्पायरिंग होगा, बहुत ही एनकरेजिंग होगा। स्कूल में जा रहे हो, बहुत सारे बच्चे आपसे इतना प्यार करते हैं क्योंकि आपने बच्चों को बहुत ही अच्छी राह दिखाई। बच्चे बहुत ही खुश है आपसे। तो ये सारा कुछ आपको इमेजिन करना है पूरे दिन के अंदर कि आप अगर वो बन चुके हो तो आपका दिन कैसा होगा। पूरे दिन में ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आप कर रहे होंगे। अगर आप बहुत बड़ी टीचर बन चुके हो, टीचर इन द सेंस के अभी यानी एजुकेशन स्पेशलिस्ट बन चुके हो, तो आपका दिन कैसा होगा पूरा दिन। यानी मे बी 2-3 बुक्स भी आपने लिख दी इंस्पायरिंग टू किड्स के लिए आपने 2-3 बुक्स लिख दी, उनको भी मैनिफेस्टेशन ये सारा कुछ। यानी उनको ऐसा ही नहीं कि खाली स्कूल की बुकिश बातें सिखाते हो, ऐसा नहीं, बट उनको ऐसी भी बातें सिखा रहे हो जो उनको पूरी लाइफ टाइम काम आने वाली है। कि पैसे में से पैसा कैसे बनाना, या फिर पैसों को कैसे अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में, कैसे अपनी मनचाही जो हम बनना चाहते हैं वो कैसे बनना, हमेशा दिल की बात सुनना, ना कि दूसरों की बात सुन के इंस्पायर होना, बट दिल की बात सुन के उसमें से इंस्पिरेशन लेके जो भी बनना है वो बनना। ऐसा आप सिखा रहे हो सबको एज ए एजुकेशन स्पेशलिस्ट। सो very important, very important to visualize yourself in completely in and out। आपको विजुअलाइज करना है। मान लो आपके पास इतने पैसे आ चुके हैं, पैसे हमें मोस्टली किसके लिए चाहिए होता है कि ताकि हम अच्छे से लाइफ जी पाए, हमें जो करना है वो कर पाए। मोस्टली पैसे चाहिए इसलिए है। ऐसा नहीं है कि $1 मिलियन लेके घर में रख दूं, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। बट मेरे पास पैसे का फ्लो इन एंड आउट ऐसा है कि मुझे जो भी करना है वो मैं कर सकती हूँ। मुझे डोनेशन देना है तो मैं इतना दे देती हूँ, या फिर मुझे कहीं पे पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जहाँ पे भी जाना है बिंदास में जा सकती हूँ। मुझे दूसरी बार सोचना नहीं पड़ रहा है कि ये इतने की टिकट है, ये इतना मुझे बुक करना पड़ेगा तो मुझे मेरे पास इतने पैसे कम हो जाएंगे। सो पैसे के बारे में भी इसी तरह से इमेजिन करना है कि आप वो सब कर पा रहे हो जो आपको करना है। वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर आप निर्भर नहीं हो पैसे के लिए, कोई परिवार के कोई परिजन के ऊपर निर्भर नहीं हो, फुल्ली खुद के ऊपर निर्भर हो पाए पैसों के लिए। इनफैक्ट इतना है आपके पास कि आप जहां जाते हो, जहां पे भी आपको लगता है कि नहीं इसको ज्यादा नीड है पैसे की, कोई ऐसा बंदा आपको मे बी वर्ल्ड में कहीं पे, मान लो अफ्रीका चले गए आप, ऐसे ही किसी को इंस्पायर करने के लिए आपकी काम की वजह से गए, या फिर ऐसे ही विजिट करने चले गए, वहां पे आप देख रहे हो कि नहीं कोई कोई ट्राइबल्स ऐसे हैं जहाँ पे जिनको पैसों की बहुत जरूरत है। यानी आप जहां पे भी देना चाहते हो इमोशनल होके, यानी इतना अंदर से ग्रेटफुल होके वो पैसे दे पा रहे हो सब जगह पे, जहां जहां पे आपको देना होता है। मानियो इंडिया में कहीं पे ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नहीं बच्चों के पास शूज तक नहीं है यहाँ पे,
और स्पेशली एजुकेशन को लेके कि भाई एजुकेशन के लिए हम पैसा देंगे तो उसको, जो बच्चों को एम्पावर आज करेगा वही हमारे देश का भविष्य है। तो वहां पे एजुकेशन में जितना हो सके पैसा दे सकते हो, बिंदास दे पा रहे हो, किसी को पूछना नहीं पड़ रहा है आपको कि मैं क्या पैसे दूं या ना दूं, क्योंकि आपके पास ही इनफ्लो इतना ज्यादा है कि आउटफ्लो भी देते जाते हो, वापस आ जाता है, वापस देते हो, इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। सो ये सारी चीजें हमें विजुअलाइज करनी है जब भी हम कर पाते हैं। तो डोंट गो टू मच, आई एम जस्ट लाइक गिविंग यू एन एग्जाम्पल के आप कैसे पूरे दिन में अपने आप को देख सकते हो। दैट इज फ्रॉम द बुक मैप बाय बोनी लॉरेंस बेरी, बोनी लॉरेंस बेरी बाय मैप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर पावर बुक। अभी हम पावर बुक पे ध्यान देते हैं, पर जिनको पढ़नी है यू कैन मैं पढ़ती हूँ, ये। आज मैं पढ़ती हूँ। ओके ओके, कल मेरा सैटरडे को मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, इसलिए मैं नहीं पढ़ी थी। ठीक है, कोई बात नहीं। सो आज हम हिंदी में ही करेंगे। कोई बात नहीं। सो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, हमने यहाँ तक रीड किया था। Yeah. तो इसके बजाय जब भी किसी प्रिय चीज को देखे तो हाँ कहे। हमें जहां पे भी हम जाते हैं, आज आप सबका ही असाइनमेंट रहेगा, यानी कल के लिए, कि सुबह से उठ के आपको चीजों को ढूंढते रहना है कि व्हाट डू आई लव। मान लो आप किचन में जा रहे हो, तो किचन में आपको कौन सी चीज बनाना पसंद है, यानी कि मे बी आपको दाल बनाना बहुत अच्छा लगता है, या चपाटीज बनाना बहुत अच्छा लगता है, या ऐसी लिस्ट करते जाओ पूरे दिन में कि मुझे कौन कौन सी चीज पसंद है। आपको पर्टिकुलर, आपके बच्चे को पसंद है उससे कोई लेना देना नहीं, आपको क्या पसंद है, आपको, आपके हस्बैंड को पसंद है, जरा साइड में रख दो उसको भी। आपको अपने बारे में सोचना है, आपको पर्टिकुलरली क्या पसंद है। मे बी खाने में आपको कोई पर्टिकुलर चीज बहुत पसंद है, आपको मे बी वो जो चिक्की आती है, तल की तिल की चिक्की जो आती है वो बहुत पसंद है, वो आप करो। आपको वॉक पे जाना सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है, तो ये सारी चीजें लिस्ट करते जाना है। सुबह सुबह मुझे सनराइज देखना बहुत पसंद है, तो ये बोलो कि आई लव वॉचिंग सनराइज। जितना हो सके पहले से पूरे दिन में जो भी चीजें मिले जो आपको पसंद है, आप बहुत प्यार करते हो चीजों से, यानी मे बी आपके अपीयरेंस के लिए आपको कोई पर्टिकुलर साड़ी बहुत पसंद है, तो यार आई लव दिस कलर ऑफ द साड़ी, या आई लव दिस साड़ी। कोई फैब्रिक आपको बहुत पसंद है, मे बी वो फैब्रिक। व्हाट टू डू का लिस्ट बना लें आज ही, कल के लिए। व्हाट टू डू यानी आपको बस लिस्ट करते जाना है जो आपको पसंद है, आपका बस वही असाइनमेंट। जो जो भी याद आता है, जो भी उस टाइम पे कुछ दिख जाता है बाहर कि मुझे ये बहुत पसंद है, ओ आई लव दिस। लिस्ट बनाओगे नहीं तो चलेगा, वो फिर बाद में बनाना। अभी खाली माइंड में ही आपको बस कैच करते जाना है कि मुझे क्या क्या चीजें पसंद है। मुझे कपड़े धोना बहुत अच्छा लगता है, ये हो सकता है, या फिर कोई काम भी, यानी जो भी चीजें आपको पसंद है वो लिस्ट करते जाना है माइंड के अंदर ही, कुछ लिखना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। मान लो मैं कल जॉब पे थी, अगर मुझे मैं कल मेरे कलीग्स के लिए वो एक इंडिया की बहुत अच्छी वो चिक्की आती है, इसलिए मुझे चिक्की याद आ रही है, तो तिल की चिक्की आती है, या फिर वो इंडिविजुअली रैप्ड पैकेट है, तो मैं इंडियन स्टोर से लाई, मैंने मेरे कलीग्स को दिया कल। एंड तो मुझे क्या पसंद है कि मुझे इनके, मेरे कलीग्स को ऐसे देना मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी उनको जो चीजें यूनिक होती है, जो उन्होंने वहां पे यहाँ पे नहीं मिलती, उस टाइप की चीजें, तो वो मुझे पसंद है। यानी क्या क्या जो भी आपको पसंद है आपको लिस्ट करते जाना है कि जो भी चीजें आपको पसंद है। आपको किसी के चेहरे पे खुशी लाना बहुत पसंद है आपको, यानी अगर मैं अपनी कलीग को देखूं, वन ऑफ माय कलीग शी, वो उसने 30 पाउंड तक उसने लूज किया पूरे 1 साल के अंदर। अभी मैं उसको देखती हूँ तो मुझे वही याद आता है हमेशा कि हाउ अमेजिंगली शी डिड इट।
यानी कुछ इतना मजेदार तरीके से उसने वो प्लानिंग किया था, लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट ईयर एंड अंटिल नाउ शी इज डूइंग इट सो स्लोली, ग्रेट, कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंट एफर्ट्स। तो उसको देख के मुझे उस पे उसके ये चीज बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, यानी मुझे बहुत पसंद है द वे शी डिड इट। तो ये मैं लिस्ट करती रहती हूँ। मान लो एक दूसरी जो कलीग है उसकी कुछ कुछ क्वालिटीज मुझे पसंद है कि उसके साथ बात करती हूँ तो उसकी ये सारी क्वालिटीज मुझे दिखती है कि हाउ अमेजिंगली शी वर्क्स। अपने कोई भी काम में उसको हमेशा कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढती रहती है। अगर मान लो कोई चीज है जो सिस्टम के हिसाब से जो हम चलते हैं तो वो नहीं हो रही है, तो हम सिस्टम बदलते हैं, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढती रहती है। तो उसकी वो क्वालिटीज। तो मुझे क्या क्या पसंद है वो आपको लिस्ट करना है कि मुझे अपनी कलीग की ये क्वालिटी पसंद है, ये वाली कलीग जिस तरह से उसने ये किया कंसिस्टेंट एफर्ट्स, वो मुझे उसकी क्वालिटी पसंद है। या फिर ऐसे ही वहां पे मेरी एक दूसरी कलीग थी, परसों वो बनाना ब्रेड लेके आई थी, तो उसके हाथ का ही पर्टिकुलरली उसके हाथ का बनाना ब्रेड बहुत ही मजेदार होता है। मैंने उसको पेन दिया था लास्ट ईयर क्रिसमस गिफ्ट के, तो शी सेड के इस बार ये वाले पेन में बनाया, तो वो मुझे स्पेशली बताने आई उस दिन जब मैं जॉब पे थी सैटरडे को। तो बोली तो उसका बनाना ब्रेड क्या मजेदार होता है। तो वो स्पेशली मुझे बताने आई, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शी इज एक्नॉलेजिंग दैट। तो वो उसका ब्रेड इतना मजेदार कॉफी के साथ क्या मजेदार लगता है, यानी तो मुझे क्या पसंद है, वाह वो ब्लैक कॉफी एंड दैट बनाना ब्रेड। तो लिस्ट करते जाओ क्या क्या चीजें आपको पसंद है, जो भी चीजें हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में से ऐसे ही एग्जाम्पल्स कुछ कुछ लिए कि मैं अगर अपनी लाइफ में देखती हूँ, मान लो घर पे हूँ तो घर पे क्या पसंद है मुझे, किचन के बाहर का मेरा जो व्यू है वो ग्रीन मुझे देखना बहुत पसंद है। फिर बारिश अगर होती है, जब बारिश है हल्की हल्की सी बारिश है, तो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत पसंद है। मेरे नजदीक में ही पहाड़ दिखते हैं मैं जहाँ रहती हूँ। तो अगर मैं थोड़ा सा इधर से मेरे घर में से निकल के ऑलमोस्ट मान लो 5-10 माइल्स चली जाऊंगी तो मैं पहाड़ पे भी जा सकती हूँ। तो मुझे जाना वहां पे बहुत पसंद है। तो ये सारा लिस्ट करना है आपको, लिस्ट करना है माइंड के अंदर। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बुक में लिखो, पूरे दिन में देखो आपको कौन कौन सी चीजें पसंद है। मे बी मूवीज के अंदर मुझे 3 इडियट्स मूवी देखना बहुत पसंद है। तो ऐसी ऐसी टाइप की मूवीज जो बहुत इंस्पायरिंग होती है, तो मूवीज में मुझे ये पसंद है। मुझे गुलाब जो फूल होता है वो बहुत पसंद है, या येलो फ्लावर्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये आपको लिस्ट करते ही जाना है कंटिन्यूअसली, जो भी चीजें आपको पसंद है। कहीं पे कुछ कुछ चीजें आपको अपने सामने दिखेगी, नहीं भी दिख रही है तो ऐसे ही मन में सोच लो क्या पसंद है। आपको किसी पर्टिकुलर टाइप का फोन बहुत पसंद है या फिर लैपटॉप बहुत पसंद है, जो भी है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल सो यू कैन रिलेट टू इट। सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। खाली लिस्ट करना है माइंड में, कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। सो लेट्स रीड। तो यहाँ इसके बजाय यहाँ से रीड कर। इसके बजाय जब भी किसी प्रिय चीज को देखें तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज को सुने तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज का स्वाद लें तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज की खुशबू सूंघें तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज को छुएं तो हाँ कहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज आपके पास है या नहीं, उसे हाँ कहें, क्योंकि इस तरह आप प्रेम देकर उसका चुनाव कर रहे हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कोई हाँ, सीमा नहीं। तो एक एक पैराग्राफ करके थोड़ा सा पोज लेना, ठीक है। तो कोई भी जो खुशबू आपको पसंद है वो उसको याद करके कि वाह ये खुशबू मुझे बहुत पसंद है। या फिर फ्रेंड्स को मिलना बहुत पसंद है, फ्रेंड्स को हेल्प करना आपको बहुत पसंद है, पार्टी करना बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है पार्टी करना। तो ये आप कि हाँ आई लव गिविंग पार्टीज, या आई लव जब फ्रेंड्स मिलते हैं कोई फालतू कोई बातें नहीं, कुछ नहीं, गेम्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये मुझे बहुत पसंद है कि
ऐसी ऐसी गेम खेल खेल के बाप रे हंस हंस के पागल हो जाते हैं कभी कभी ऐसी। यानी मेरा जब ग्रुप था, अब तो सारे थोड़े स्कैटर्ड हो चुके, बट हम लोग जब ग्रुप में एक बार हमने पिक्चर ये वाली गेम खेली थी, मेरे ही घर पे मैंने सबको बुलाया था, क्रिसमस पार्टी मैंने रखी थी, बट सब खाना खुना लेके आए थे, यानी पॉटलक था। तो हमने एक गेम खेली थी, मेरी फ्रेंड लेके आ जाती, कुछ नई नई गेम्स वो लेके आती थी। तो ये एक गेम लेके आई थी जिसमें पिक्चर ड्रॉ करना है, यानी दो ऐसे अलग ग्रुप बने, तो यानी बॉयज गर्ल्स सब है ग्रुप के अंदर, और पिक्चर ड्रॉ करना है और दूसरे वाले ग्रुप को उसको गैस करना है कि कौन सा पिक्चर ड्रॉ किया है। तो हमने वो बोर्ड रखा, हम पिक्चर्स वो ड्रॉ कर रहे हैं, वो सब कुछ। मेरा मेरा जब टर्न आया था तो मैंने इतनी बुरी तरह से सीजर्स को ड्रॉ किया था, सब हंस हंस के पागल हो गए थे कि इतना हंसे थे मेरी वो सीजर का जो ड्राइंग था देख के। ओ माय गॉड। तो ऐसी पार्टीज करना मुझे पसंद है जहां पे यानी यू आर कंप्लीटली योरसेल्फ, you know, nobody is judging you, nobody is everybody is themselves। वो पागलपंती पे आ जाते हैं कभी कभी अपनी खुद की। तो उस तरह की पार्टीज मुझे बहुत पसंद है। तो आपको लिस्ट करते ही जाना है आपको क्या क्या चीजें पसंद है, ठीक है। जो कुछ गाने स्पेशल सुनना पसंद है, या किचन में काम करते करते डांस करना पसंद है गाने लगा के। जैसे मैंने कल वापस जॉब पे से आके मैं जब खाना बना रही थी रात का, तो मैंने ऐसे ही किया, म्यूजिक लगा दिया। कोई पर्टिकुलर सॉन्ग पसंद है तो मुझे लव यू जिंदगी वाला सॉन्ग बहुत पसंद है, लव यू जिंदगी, तो इस टाइप के सॉन्ग्स। तो जस्ट लिस्ट डाउन व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, ताकि आपको एग्जाम्पल्स मिले। जरूरी नहीं है कि मुझे जो पसंद है वो आपको आएगा, राइट, बट आपको खुद को देखना है, पूछना है, अंजलि क्या पसंद है तुझे, वंदना क्या पसंद है, पुष्पलता क्या पसंद है तुझे। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आपके अंदर ही दिल में कुछ कुछ हलचल होने लगती है, कुछ कुछ चीजें आपको पसंद होगी। मे बी मुझे एयरप्लेन में ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मुझे ये करना पसंद है, वो करना पसंद है, स्काई डाइविंग करना पसंद है, स्विम करना बहुत अच्छा लगता है, स्कूबा डाइविंग करना पसंद है, जो भी है, क्योंकि ये आगे जाके भी आने वाला है ये चीज। बट अभी मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, ताकि एटलीस्ट यू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन कि मुझे क्या क्या पसंद है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। कोई सीमा नहीं है, अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो हर चीज संभव है, बशर्ते आप उसे सचमुच चाहें। सृष्टि में कहीं कोई अभाव नहीं है, जहां भी लोगों की किसी चीज का अभाव दिखता है वहां सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। स्वास्थ्य, धन, संसाधनों या खुशी का अभाव नहीं होता। आपूर्ति मांग के बराबर होती है। प्रेम देंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। आपका law जीवन of- आपकी कहानी। हाँ, लॉ ऑफ हमेशा याद रखना है। जहां पे भी जिस चीज से, अभी अगर मैं बोलती कि वाह मुझे वो पार्टीज बहुत पसंद है, यानी मैं क्या प्यार दे रही हूँ, लॉ ऑफ लव। अगर मैं जैसे ही सोच रही हूँ उसके बारे में बहुत खुश हो रही हूँ अंदर से ही, कि ऐसी पार्टी जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स, कभी कभी हम दम शराज खेलते थे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में। ओह माय गॉड, कोई कोई बंदे आके ऐसा एक तो मूवी देते हैं कि पूछो मत, और फिर वही मूवी को एक्ट करते जाके। ओह माय गॉड, एक बार तो कौन सा, मेरे हस्बैंड को ही किसी ने बहुत ही कुछ पेचीदा सा मूवी दिया था, एंड द वे ही डिस्क्राइब्ड आई कुड नॉट इमेजिन कि ये करके भी ऐसे वो खेल सकते हैं। मतलब कहीं किसी ना किसी वे में उन्होंने अपनी टीम को गैस करने में, मतलब पूरी तरह से गैस करवा दिया था वो मूवी। बट इतना पेचीदा अजीब सा मूवी था। आई मीन हम लोग हंस हंस के पागल, मतलब हंस हंस के हमारा पेट दुख जाता था, द वे दे यूज टू डू इट। और वैसे बंदे ऐसे होते हैं जो वैसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलते, एकदम शांत होते हैं पार्टी के अंदर, बट उनको ये कोई गेम खिला दो, अलग ही उनका पर्सनालिटी निकल के आता है बाहर, कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे जो वैसे आपके सामने कभी बात नहीं करेंगे, इतना ज्यादा बोलते नहीं है, बट गेम के अंदर आके तो उनकी पर्सनालिटी देखने लायक होती थी कि अच्छा ये भी कर सकते हैं। इतनी इतनी
पागलपंती होती थी यानी। तो मुझे बहुत पसंद है। अभी आप प्यार दे रहे हो सारी चीजों को, जितना आप प्यार देते हो वैसी ही चीजों को आप आकर्षित करेंगे अपनी लाइफ में। तो जितना हो सके जो चीजें आपको करनी अच्छी लगती है, मे बी आपको जस्ट बात बात में सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है, चलो ये हुआ, चलो लेट्स सेलिब्रेट, अच्छा ये फेस्टिवल है लेट्स सेलिब्रेट। मे बी शादी में जाना आपको बहुत पसंद है, एकदम लेविश शादियों में जाना। जैसे अभी मैं यानी कल मेरी एक फ्रेंड वो जा रही है न्यूयॉर्क शादी में, तो मेरे पास आई एम एक्सपर्ट इन फाइंडिंग टिकट्स, तो सबके लिए मैं कभी कभी टिकट्स बुक कर देती हूँ। तो क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, वैसे भी मैं अपने हस्बैंड की किसी की भी टिकट्स बुक करनी होती है तो मेरे पास लोग आते हैं। तो वो मेरी फ्रेंड आई थी, उसकी टिकट्स शादी के लिए बुक करनी थी। बोले अलिफिया आप चलो, बहुत ही मजेदार शादी होने वाली, बहुत लेविश बीच के ऊपर शादी है। आप थोड़े ही दिन पहले मैं याद कर रही थी कि मुझे ऐसी शादियों में जाना बहुत पसंद है, जो लेविश वाली शादियां होती है जहां मजा ही आ जाता है। यानी आपको प्यार देना है, वो कहीं ना कहीं से मैं अट्रैक्ट भी कर रही हूँ, करती रहती हूँ ऐसी चीजें। बट आई मीन आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ गोइंग इनटू दैट मैरिज, बट मे बी क्या मालूम अचानक से हो जाए जाना, यू नेवर नो। सो वो बोल रही थी नहीं चल चल अलिफिया, बहुत मजा आएगा, देख मैं तुझे बोलती हूँ ये शादी बहुत लेविश होने वाली है। यानी वो बहुत ही रिच जो है, जो फैमिली न्यूयॉर्क के अंदर लॉन्ग आइलैंड पे, बोले बीच के ऊपर उसकी शादी होने वाली है। और तो मैंने बोला हाँ, लेविश शादियां मुझे बहुत पसंद है। ऐसे मैंने एक शादी अट्रैक्ट की थी लास्ट ईयर, ऐसे ही एकदम से मुझे आया अंदर से कि यार मुझे एक ऐसी अच्छी शादी अटेंड करनी है जहां पे जैसे मजा ही आ जाए। then I attracted one marriage like that in US। तो जो भी आपको पसंद है, आपको कुछ किसी तरह के तैयार होना बहुत पसंद है, ब्यूटी पार्लर में जाके बस अपने आप को फेशियल करवाना बहुत पसंद है, जस्ट लिस्ट डाउन ऑल व्हाटएवर। अभी खाली माइंड में लिस्ट बनाते जाओ, फिर लिखना भी है आपको, बट आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू। लेट्स रीड। आपका जीवन आपकी कहानी, जरा यह बताएं कि आप अपने बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं। क्या आप अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हैं। अब जरा यह बताएं कि आप अपने बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं। क्या आप अपने दिल में यह मानते हैं कि आप कुछ चीजें कर सकते हैं और कुछ चीजें नहीं कर सकते। क्या आप अपने बारे में यही कहानी कह रहे हैं, लेकिन जान ले यह कहानी सच नहीं है। अगर कोई यह कहता है कि आप किसी दूसरे से कमतर हैं, तो उसकी बात न सुने। अगर कोई कहता है कि आप किसी मायने में सीमित हैं, तो उसकी बात न सुने। अगर कोई कहता है कि आप अपना प्रिय काम नहीं कर सकते या उससे आजीविका नहीं कमा सकते, तो उसकी बात न सुने। अगर कोई कहता है कि आप पुराने महानतम लोगों जितने मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसकी बात न सुने। अगर कोई कहता है कि आप इस वक्त पर्याप्त अच्छे नहीं हैं और आपको जीवन में अपनी प्रतिभा को साबित करना होगा, तो उसकी बात न सुने। अगर कोई कहता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं या आपको जो करना पसंद है या आप जो बनना चाहते हैं वह आपको नहीं मिल सकता, तो उसकी बात न सुने। अगर आप इनमें से किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं, तो फिर आप खुद की सीमाओं में बांध रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सच नहीं है। एक भी ऐसी चीज अच्छी चीज नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते या जो साकार नहीं हो सकती। यस। तो कोई आपको कुछ भी आके बोलता है कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये आपको इजी लगता है, बट हम पूरे दिन में आपने देखना कितनी सारी हम अपने आसपास वालों, हम वैसे भी हम वही बनते हैं जिनके साथ हम ज्यादा टाइम समय बिताते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हर बात हम सबकॉन्शियस में ले रहे होते हैं, जिनके भी साथ हम ज्यादा टाइम बिताते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है कि किसी की भी लिमिटिंग चीजों को हम अपने अंदर नहीं जाने देंगे। अगर आज मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, भले कोई भी आके मुझे कुछ भी बोलता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। या कोई भी आपको आके कमतर दिखाता है खुद को कि नहीं आप में ये क्वालिटीज नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, अरे सक्सेसफुल तो कोई कोई ही बनता है, हर कोई नहीं बन सकता। कोई आके अगर आपको ये बोलता है, डोंट लिसन टू देम, दे आर एक्चुअली नॉट ट्रू। आप अपनी खुद के दिल की बात सुने।
यूनिवर्स की बात सुने, उस पे अपने अमल करते जाए। आप कंसिस्टेंट रहे अपनी चीजों के अंदर, जो भी आपको बनना है, जो भी आपको करना है, आप उसमें कंसिस्टेंट रहिए। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं पा सकते, ये साकार नहीं हो सकती। तो किसी और को अपनी लाइफ में डिक्टेट ना करने दे। सो ये हमेशा बोला, इसीलिए ऐसे लोगों के साथ उठते बैठिए जो आपको बहुत एनकरेज करते हैं, जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं। ऐसे लोगों के वैसे तो ऐसा ही होता है, जब हमारा खुद का ऑरा धीरे धीरे चेंज होने लगता है, हम खुद पॉजिटिविटी की तरफ अपना ऑरा बढ़ाने लगते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी में रहने लगते हैं, तो हम वैसे भी ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं अपनी लाइफ में। बट आप अभी अपना करंट जो भी सिचुएशन होगी वहां पे देखे, मैं कैसे लोगों के साथ उठती बैठती हूँ। ऐसे लोगों के साथ अपनी संगत बनाए जो आपको बहुत पॉजिटिविटी देते हैं लाइफ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कैसे हमारे दोस्त होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अब तो लेट्स रीड फर्दर। प्रेम की शक्ति कहती है, प्रेम की शक्ति कहती है, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। क्या यह कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? प्रेम की शक्ति कहती है, आप जो बनना, करना या पाना चाहते हैं उसके लिए प्रेम देंगे तो वह आपको मिल जाएगा। क्या यह कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? आप जैसे हैं मूल्यवान हैं, आपको संसार की सारी अच्छी चीजें पाने का हक है। आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आपने कोई गलत चीज कर दी है, तो यह जान ले कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। हाँ, तो मान लो कभी आपसे कोई गलती हुई, सेल्फ रियलाइज कर लेते हो, दैट इज कि वो आकर्षण का नियम आपको हमेशा माफ कर देता है। कोई आपको अपने आप को पनिश करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई अगर आपको आके बोलता है कि नहीं आप ये नहीं करोगे, आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, प्लीज डोंट लिसन टू देम, दैट क्रैप, कि गॉड ऐसे ऐसे पनिश करते हैं। हाँ, कर्मों का हमें होता है, जो हम देते वही हमें वापस मिलता है, तो ये हमेशा जान ले। बट ऐसा किसी को मत सुने कि नहीं ऐसे आप अगर नहीं करोगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, ये भगवान आपको ऐसे पनिश करेंगे, प्लीज डोंट लिसन। भगवान इतने दिलदार है, वो कभी किसी को पनिश नहीं करते। वो तो हम ही है, हमारा ही, हम जो कर्म है होते हैं हमारे, वही हम भुगतते हैं। आज अगर मेरे साथ बार बार कुछ नेगेटिव चीज हो रही है, पक्का मैंने उसको कहीं ना कहीं पे लाइफ में कुछ तो कुछ नेगेटिव दिया हुआ है, इसलिए वो खाली वापस घूम के आ रहा है। अगर वो आया है अभी अभी भी मैं कुछ नेगेटिव उसमें दे दूंगी, वापस वो कर्म का चक्कर चले जाएगा। तो अभी मुझे अलर्ट होके वहां पे अभी एटलीस्ट नेगेटिविटी ना दे के कहीं ना कहीं पे शुक्राना के भाव में रहना है। कहीं ना कहीं पे वो शक्ति के साथ कनेक्ट होके उनसे माफी मांगनी है कि हाँ मैंने कुछ तो किया है पिछले जन्म में या जहां पे भी, मे बी पिछली लाइफ में, बट आप मुझे माफ कर दो ये चीज के लिए जो भी मैंने किया है, या जो कोई बंदा है जो जिससे माफी मांगने की जरूरत है वो कर लो। बट ये जो शक्ति है आकर्षण का, जो आकर्षण की जो शक्ति है, ये जो महान जो शक्ति है, प्यार की शक्ति है, वो कभी किसी को वो इजीली क्षमा करती है। आई मीन व्हेन यू रियलाइज, कुछ भी आपको रियलाइज हो जाता है, बस दैट्स इनफ। अपने आप को कोई पनिश करने की जरूरत नहीं है। सो वास्तविक संसार, लेट्स सी। वास्तविक संसार, शुरुआत में केवल संभावनाएं थी। किसी के देखने पर ही सृष्टि अस्तित्व में आ सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाले कई अरब साल बाद आए। सृष्टि का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम इसके बारे में सचेत हैं। मार्टिन रिस, जन्म 1942, अंतरिक्ष भौतिकविद। मैं आपको दिखने वाले संसार के दृश्यों के पीछे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप जो देखते हैं उसका अधिकांश हिस्सा उतना सच नहीं जितना कि आप मानते हैं। अदृश्य में कुछ साहसिक कदम उठाने से दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा और आप असीमित जीवन पाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। हाँ, तो असीमित जीवन आपको पाना है। मान लो आप आज आपको ये लेविश शादी बहुत पसंद है और आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, ओके। अभी हम अपने ही आप को कभी कभी लिमिट कर देते हैं। हम सोचेंगे कि नहीं अभी नहीं, मेरे ऊपर तो ये सारी जिम्मेदारियां है, या मेरे ऊपर ये है वो है करके हम खुद को ही, ये जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, जस्ट अभी याद आ रहा है इसलिए। तो
हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, बट आपको कुछ भी जो भी एक्सपीरियंस करना है दिल से आ रहा है अगर, तो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वहां पे आपको क्या सोचना है, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड एंड आई डिजर्व ऑल द गुड थिंग्स। तो वहां पे लिमिट रहेगी ही नहीं। अगर मैं अपने आप को मान लो लिमिट करती हूँ कि नहीं मेरे ऊपर तो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, मेरे ऊपर तो ये है वो है, नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए, व्हाट इज दैट, आई एम लिमिटिंग माई सेल्फ। जबकि बाहर तो कोई लिमिट नहीं होती, हम ही खुद को लिमिट करते हैं। अगर देखो अभी मैं खुल जाऊंगी ना तो अपने आप बाहर सेट होता है चीजें, क्योंकि मैंने अपने आप को चुना, अब मुझे जो पसंद है वो चीजों को चुना। अपने आप बाहर सब कुछ होता है। मैंने ये देखा है कि अगर आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, पाना चाहते हो, प्यार देते हो, अपने आप यूनिवर्स कुछ कुछ बाहर की चीजें अपने आप ध्यान रख लेता है वो, और आपको जो चाहिए वो अपने आप हो जाता है। सो हमेशा ये याद रखे, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड एंड आई एम हियर टू लिव अ मीनिंगफुल अमेजिंग लाइफ। आई एम मेंट टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। हमेशा अपने आप को याद दिलाएं, तो किसी चीज में रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहोगे, खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, खुद को लिमिट नहीं करोगे। सो लेट्स रीड फर्दर। भौतिक संसार की जिन ज्यादातर चीजों पर आप इस समय विश्वास करते हैं वे दरअसल सच नहीं है। आप खुद को जितना मानते हैं उससे कहीं बढ़कर है। आप जीवन और सृष्टि को जितना मानते हैं वे उससे कहीं बढ़कर है। आपको लगता है कि संसार में चीजें सीमित मात्रा में है। आपको लगता है कि धन, स्वास्थ्य और संसाधनों की मात्रा सीमित है, लेकिन यह सच नहीं है। किसी चीज का अभाव नहीं है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे असंख्य ग्रह और अनंत सृष्टियां अस्तित्व में है, और हम लोग हर पल पृथ्वी और सृष्टि की एक हाँ एक स्क्रॉल करना हाँ जी हाँ जस्ट सृष्टि की एक वास्तविकता से दूसरी वास्तविकता पर पहुंच सकते हैं। यही विज्ञान के माध्यम से प्रकट होने वाला वास्तविक संसार है। तो यहाँ पे बहुत ही भौतिकी जो ज्ञान है, क्वांटम फिजिक्स जो बोलते हैं, वो उसको समझने की हमें जरूरत है। वो क्या बोलता है कि अभी जो हमें जो संसार दिख रहा है उससे कहीं बढ़कर है संसार के अंदर। ये तो हमारी इतनी परसेप्शन है इसलिए हमें इतना ही दिख रहा है। हम जो मानते हैं उससे कहीं बढ़कर है। संसार में चीजें सीमित मात्रा में है, हमें ऐसा लगता है, बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और क्वांटम फिजिक्स के अनुसार, जो क्वांटम फिजिक्स में लोग बहुत कुछ स्टडी करते रहते हैं, ऐसे कई सारे होते हैं लोग जो क्वांटम फिजिक्स को स्टडी करते हैं, तो उनको कैसे ये पता चला कि ये खाली पृथ्वी ही एक ग्रह नहीं है, ऐसे बहुत सारे दूसरे भी ग्रह है, प्लैनेट्स हैं, जहां पे सृष्टियां अस्तित्व में है, अनंत, इनफाइनाइट। ये हमें लगता है कि इतनी ही दुनिया है, बस इतना ही है। दुनिया आई मीन अनंत है, अनंत, इनफाइनाइट। तो अगर हम अपना यहाँ पे जीवन कंप्लीट करते हैं धरती के ऊपर, तब हम दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर भी जो अस्तित्व है, जो जीवन है, वो भी हम कर पाते हैं। तो विज्ञान के माध्यम से प्रकट होने वाला वास्तविक संसार है। सो लेट्स रीड, ये वाला जो कोट है वो रीड करते हैं। सृष्टि में हम भौतिक वास्तविकता के अनुरूप होने वाली फ्रिक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर लेते हैं, लेकिन उसी कमरे में असंख्य समानांतर वास्तविकताएं मौजूद होती हैं, हालांकि उन तक ट्यूनिंग नहीं कर सकते। स्टीवन विनवर्थ, जन्म 1933। हाँ जी, एक सेकंड। तो सृष्टि में हम भौतिक वास्तविकता के अनुरूप होने वाली फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर लेते हैं, लेकिन उसी कमरे में असंख्य समानांतर वास्तविकताएं मौजूद होती है, यानी इनविजिबल रियल्म में पैरेलल रियलिटीज चलती होती है। जैसे ये लोग भी, कुछ साइंटिस्ट लोग कहते हैं ना कि जैसे इंडिया में ही है कि
कोल का रिजर्व जो है खत्म होने वाला, अगले 20 साल में 25 साल में कोल खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो ना कहीं फिर दूसरी जगह वो हो जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट लोग ये कुछ कहते हैं भी, कि अब हाँ कुछ भी लिमिट, वो कभी कभी तो चीजें आपको हम देखो अभी पूरे अगर प्लैनेट के ऊपर हम देखने जाए पूरे वर्ल्ड में, तो कितने लोगों के पास पूरे वर्ल्ड का जो वेल्थ है वो 3, 4 या 5% लोगों के पास है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10% ही लोग हैं जिनके पास है। तो वो 10% लोग हमेशा चाहते हैं कि आपकी ये जो थिंकिंग है वो लिमिटेड ही रहे, इसलिए कोई कुछ चीजें ऐसी होती रहती है, अंडरस्टैंड। बाकी ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। अगर कोई हमें बार बार बताता है कि ये चीजों की कमी है या ये चीजें खत्म होने वाली, डोंट लिसन टू देम, डोंट। क्योंकि वो ऐसे ही हमें 90% लोगों को ऐसे ही बनाए रखेंगे, तभी तो उनके पास वो धन रहेगा। अगर हम ही अपना पावर समझ जाएंगे तो फिर उनका कैसे चलेगा, राइट? जो पावर है, इसलिए वो हमें हमेशा ऐसे ही लूप में बनाए रखने के लिए ये सारी चीजें होती है। बट हमें हमेशा याद रखना है, देयर इज नो लिमिट टू एनीथिंग। ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ अनंत है, असीमित है। और हमारे भले मुझे ये कमरा दिख रहा है, यहाँ पे 3-4 कंप्यूटर्स पड़े हैं या कुछ कुछ चीजें पड़ी है मेरे आसपास, मेरे हस्बैंड की ऑफिस रिलेटेड, बट इसके साथ साथ पैरेलल रियलिटीज में और भी बहुत चीजें चल रही है जो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही होंगी, बिकॉज मैं वो फ्रिक्वेंसीज के साथ ट्यूनिंग में ही नहीं हूँ। अभी आप समझे, हम यहाँ पे जो भी चीजें है वो क्या है, एनर्जी है। जो एनर्जी के साथ हम ट्यून इन हो जाते हैं वो एनर्जी हमें दिखने लगती है। जिस एनर्जीज के साथ हम ट्यूनिंग में नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी में हम नहीं है, वो चीजें हमें नहीं दिखती। यानी पैरेलल रियलिटीज हमारे साथ साथ ही चल रही होती है। बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमें नहीं दिखती एज ए ह्यूमन, और एज ए ह्यूमन ही आप देख सकते हो, बट आपको वो फ्रीक्वेंसी में जाना होता है, ट्यूनिंग में। सो लेट्स रीड फर्दर। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार में समय की कमी है और शायद इस वजह से आप जीवन भर समय बचाने की खातिर दौड़ते भागते रहे होंगे, लेकिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बता दिया कि समय तो केवल एक भ्रम है। तो टाइम एंड स्पेस जैसा कुछ होता नहीं है। तो ये कितने सारे लोग ये बोल चुके हैं, जो भी महान महान लोग थे। तो आइंस्टाइन ने भी यही बताया। लेट्स रीड। अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद एक अस्थायी और सतत भ्रम के सिवा कुछ नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन 1869 से 1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। आपको लगता होगा कि हाँ, वास्तविक संसार एक सेकंड अंजलि जी। तो अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद एक स्थायी और सतत भ्रम के सिवा कुछ नहीं है। तो ये अगर मैंने आपको पहले बताया होगा कि मान लो हमारा ये पूरा हमें लगता है कि पास्ट है, फ्यूचर है, हमें ऐसा लगता रहता है कि पास्ट है, ये प्रेजेंट है और फ्यूचर है। बट एक्चुअल में देखने जाओ तो हमारी पूरी लाइफ खाली प्रेजेंट मोमेंट में ही चल रही है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ग्रास्प करना इनिशियली मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, कैसे कैसे, बट अब मैं धीरे धीरे समझ पा रही। यानी अगर मान लो मैं 5 साल की बच्ची थी तो वो भी यही मोमेंट में हुआ है। ओके, अभी जैसे मुझे लगता है कि नहीं 5 साल की बच्ची तो मैं बहुत सालों पहले थी, मुझे वो टाइम का मैं खुद वो टाइम का दे रही हूँ। यानी कि इतने साल पहले मैं 5 साल की बच्ची थी, ये कौन दे रहा है? मैं दे रही हूँ टाइम, जबकि टाइम जैसा कुछ होता ही नहीं है रियलिटी में। यानी कि एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। यानी मैं 5 साल की बच्ची थी, वो भी प्रेजेंट मोमेंट में हुई, अभी हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट के अंदर। और आज मैं इतने साल की हूँ, मैं ऐसी एडल्ट बन चुकी हूँ, ये भी प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है। यानी आप अपने आप को देखो, मान लो आप बचपन में थे, आपने साइकिल ली थी उस टाइम पे और आप साइकिल चला रहे थे, बट वो साइकिल लेने के बाद जब आप साइकिल को एक्सपीरियंस कर रहे थे, चला रहे थे, वो तो वही मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में ही हुआ है। अभी आप उसको पास्ट की तरह देख रहे हो, क्योंकि हमने उसको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का लेबल दिया हुआ है।
हमने बोला है कि इतना समय लगा है, इतना ईयर लगा है, इतना टाइम लगा है, बट एक्चुअल में एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। और हमें लेकिन जो बीत गया, जैसे आप 5 साल की, तो 5 साल तो ऑलरेडी वो बीत गया। अब हम जब भी अगर याद करते हैं तो वो तो पास्ट ही होगा ना, प्रेजेंट तो वहां पे नहीं हम आएगा। याद करते उस समय के लिए past है। प्रेजेंट था, हाँ, उस समय के लिए वो प्रेजेंट था, लेकिन आज के लिए तो वो पास्ट हो गया। जैसे आज के लिए जो प्रेजेंट है, कल हाँ, के लिए ये आज हमारा पास्ट हो जाएगा। यस यस, बट वो पास्ट का जो नाम है वो हमने दिया है, बट एक्चुअल में एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस मोमेंट। टाइम जैसा कुछ है ही नहीं। ये इतने साल हुए या ये पास्ट हुआ, ये हम उसको टाइम दे रहे हैं, हमारा माइंड देता है। एक्चुअली माइंड ने टाइम और स्पेस को बनाया है, बट रियलिटी में टाइम एंड स्पेस जैसा कुछ है ही नहीं। पैरेलल रियलिटी सब कुछ प्रेजेंट में चल रही है। अगर मैं 5 साल की थी, आज मैंने उसको दिया हुआ है कि इतने इतने साल के पहले मैं 5 साल की थी, बट अगर मैं उसमें से साल निकाल दूं, उसमें से पास्ट निकाल दूं, तो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। इसलिए ऐसा कहा जाता है, इसलिए अभी समझो ये चीज। हम नेक्स्ट मिरर वर्क करेंगे तो मिरर के अंदर भी आपको ये समझ में आएगा कि हम भले हम सोचते हैं कि मेरा तो पास्ट में, यानी 5 साल की जो मैं बच्ची थी वो तो मैं पास्ट में थी बहुत सालों पहले, यानी कि वो तो जा चुकी है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो अभी भी यहीं पे है, वो 5 साल की बच्ची। यू अंडरस्टैंड? यानी कि मेरे जो जिन जिन पार्ट्स को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है वो अभी भी मौजूद है। यानी हमारे अंदर ही वो 5 साल का बच्चा भी है। यस, जो हम हमारे इसको अंदर इनर ही वो चाइल्ड 5 बोलते साल का हैं। बच्चा है, 6 साल का, 7 साल का। आज हमारा जितना भी उम्र हो गया और पूरी पीछे की लाइफ हमारे अंदर है, तो वो सारा प्रेजेंट मोमेंट हो गया। यस, सारा कुछ प्रेजेंट मोमेंट है। यानी इसीलिए इनर चाइल्ड को हील करना, इनर चाइल्ड को हील करना आप सुनते रहते हो। व्हाई इज दैट? बिकॉज वो इनर चाइल्ड अभी भी है। हमें लगता है कि वो 5 साल की जो अलेफिया थी, मैं तो उसको छोड़ के आ गई हूँ, इतने सारे साल बीत चुके, वो तो गई। ये मैंने उसको ये लेबल दिया हुआ है। टाइम का लेबल किसने दिया है? मेरे माइंड ने दिया हुआ है। और ये कलेक्टिव है, यानी कलेक्टिवली हम सब ह्यूमन ने टाइम को बनाया हुआ है, माइंड ने। बट एक्चुअल में जो रियलिटी के अंदर टाइम एंड स्पेस जैसा कुछ भी नहीं है। यानी कि वो 5 साल की भी अलेफिया अभी यहीं पे मौजूद है, वो टीन एज वाली जो अलेफिया थी वो भी है, एडोलेसेंट वाली अलेफिया थी वो भी है। डू यू अंडरस्टैंड? इसीलिए हमारे सभी पार्ट्स को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं, इनफैक्ट ये पूरी लाइफ ही इसी के बारे में, सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में। जितना जितना हम अपने आप को सेल्फ एक्सेप्ट करते जाते हैं, अपने ही लिमिटलेसनेस को हम बढ़ाते जाते हैं। जहां पे हम खुद को लिमिटलेस, धीरे 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 हम रियलाइज करते हैं कि ओ हम तो लिमिटलेस है। यानी कि मैं अपनी सोच से ये भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ, मैं अपनी सोच से ये भी कर सकती हूँ। सोच का दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसीलिए कुछ कुछ चीजें मैं जितना भी, मान लो कि अभी जो मेरा दायरा होगा, वो दायरे में, यानी जो मेरी बिलीफ सिस्टम है, जो भी मेरा दायरा होगा, उसी दायरे के हिसाब से ही मैं चीजों को अट्रैक्ट करूंगी। मैं एकदम से, मान लो अभी मेरा दायरा ही छोटा है और मैं कुछ बड़ी बड़ी चीजें ऐसे ही, नहीं सबने बोल दिया नहीं मैनिफेस्ट करो, मैं बहुत ही बड़ी चीजें दायरे में, यानी ऑफकोर्स सोचना तो है ही, बट वो मैनिफेस्ट अभी नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा दायरा नहीं बढ़ा है। और दायरा सेल्फ एक्सेप्टेंस का ही बढ़ता जाता है, खुद सेल्फ एक्सेप्टेंस का ही दायरा बढ़ता जाता है अगर डीपली अंडरस्टैंड करोगे तो। मैं जितना अपने आप को एक्सेप्ट करती जाऊंगी, इतना ही मैं अपनी लिमिटलेसनेस को देखती जाऊंगी कि मैं इसमें इतनी लिमिटलेस हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, या मैं ये, मेरा जैसे जैसे मेरी वो जो मेरा दायरा है वो बढ़ता जाएगा। अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स डाउन टू सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड रियलाइजिंग हु एम आई। ये जो क्वेश्चन होता है ना, हु एम आई, ये क्वेश्चन का आंसर पूरा जीवन हमें मिलता है, यानी पूरा पूरा जीवन लग जाता है ये आंसर ढूंढने में। सो लेट्स रीड। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार सजीव और निर्जीव चीजों से बना है,
लेकिन सृष्टि की हर चीज जीवित है, कुछ भी मृत नहीं है। तारे, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि और दिखाई देने वाली हर चीज में जीवन धड़क रहा है। यह एक वास्तविक संसार है जो प्रकट हो रहा है। यस, यानी हमें हमें ऐसा सिखाया गया कि नहीं, ये सारी चीजें निर्जीव होती है, या हम हमारे अंदर जिन जिन लोगों के अंदर सांस होती है, वो जो सांस ले पाते हैं वो लोग जीवित है, और बाकी सी चीजें मृत है। बट एक्चुअली वो सच नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग हैज एनर्जी। कल कौन सी चीज थी, हाँ, अभी मैं आपको खाली एक एग्जांपल देती हूँ। ओके, तो करी पत्ता में लेके आई थी, मुझे लगता है 1.5 महीना हुआ होगा। ऑल राइट, सो बट वो करी पत्ता जब मैं लेके आई थी, मैं एक नया इंडियन स्टोर अभी यहाँ पे हमारे एरिया में इंडियन स्टोर खुला है, वो मेरे फैमिली फ्रेंड्स का ही है, तो मैं वहां से करी पत्ते लेके आई थी। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब वो करी पत्ता जब मैं लेके आई थी तो मैंने उसको बहुत प्यार दिया था, यानी जो मैं रेगुलर लाती थी उससे ये वाले करी पत्ते मुझे बहुत ही पसंद आए थे। उसकी जो स्मेल थी, बहुत फ्रेशनेस मुझे लग रही थी। और वैसे हर बार क्या होता था कि मैं जब करी पत्ता लेके आती थी, विद इन वीक और 2 वो खराब हो जाते थे फ्रिज के अंदर। अब कल मैं नोट कर रही थी, जो मैं करी पत्ता 1.5 महीने पहले लाई थी, मैंने उसको बहुत प्यार दिया था कि यार कितना मजेदार है, ओ माय गॉड दिस दैट। मैं उसके बारे में जब भी उसको यूज करती थी बहुत प्यार देती थी। कल मैंने वो करी पत्ता सिम थोड़ा सा ही बचा है अभी, बहुत बड़ा पैकेट था, उन्होंने बहुत अच्छा बड़ा पैकेट दिया था, बहुत ही फ्रेश था उस टाइम पे। वो करी पत्ता अभी भी फ्रेश है, इतना ही फ्रेश जब वो दिन में फ्रेश था। मैंने एकदम से कल नोट किया, वैसे ये चीजें बहुत जल्दी हमारे नोटिस में आती नहीं है। मैंने नोट किया कि मैंने उसको बहुत प्यार दिया था, जैसे राइस एक्सपेरिमेंट होता है ना, कि राइस एक्सपेरिमेंट में जिस जिस जार को आप बहुत प्यार दे रहे हो, वो जार में राइस ऐसे के ऐसे रहते हैं 15 दिन बाद भी, या 20 दिन बाद भी, व्हाइट के व्हाइट रहते हैं वो राइस। जिसको आपने इग्नोर किया होगा या जिसको आपने नफरत दी होगी, वो राइस में फूग, फंगस, क्या क्या पता नहीं लग जाता है। इसी तरह मेरा ये करी पत्ता का एक्सपेरिमेंट जैसा ही होगा, समझ लो। 1.5 महीने तक कभी नहीं रहता है मेरे पास, जो मैं अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मेरे माइंड में ऐसी बिलीफ थी कि नहीं, करी पत्ता 1-2 वीक से ज्यादा तो नहीं टिकता है, फ्रिज में भी नहीं टिकता है, काला हो जाता है। बट इसको मैंने कुछ सोचे बिना, ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि काला हो जाएगा, ये है वो है। बस इसको मैंने प्यार बहुत ज्यादा दिया था, बहुत ज्यादा। जब भी निकालती थी इतना प्यार, कितनी मजेदार खुशबू है ये, मेरे खाने को कितना मजेदार फ्लेवर देता है। मुझे वैसे भी करी पत्ता बहुत पसंद है। तो मैं देख रही हूँ 1.5 महीने से वो करी पत्ते में जान है, क्योंकि उसको प्यार मैंने बहुत दिया था। एक बार ऐसे ही मैंने अपनी फ्रेंड के साथ यही चीजों के बारे में बात करी थी, ये पावर बुक के रिलेटेड ही, कि जो चीज को हम प्यार देते हैं, तो मैंने उसको राइस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था कि राइस को प्यार देते तो 20 डेज तक की भी वो व्हाइट राइस व्हाइट जैसे ही रहते हैं। तो मैं से उसको ये एक्सपेरिमेंट बता रही थी, फिर उसने रिलेट किया कि हाँ यार, ये चीज मैं रिलेट कर पा रही हूँ अभी। क्योंकि मेरे हस्बैंड एक बार बोले ब्रेड लेके आए थे, तो वैसे हम लोग ब्रेड बाहर रखते हैं तो 2-3 दिन में ही खराब होने लगता है कभी कभी ब्रेड, या 4 दिन से 5 दिन ज्यादा से ज्यादा। वो बोली कि मेरे हस्बैंड उसको लेके आए, इतना प्यार दे रहे कि ये बहुत अच्छा ब्रेड है, ये बहुत ही मजेदार ब्रेड है, दिस दैट जो भी वो उसने खुद ने ही सामने से बोला। मैं तो उसको समझाने के लिए ये सारी चीजें बता रही थी कि कैसे हमारे वर्ड्स में, हमारे थॉट्स में कितना पावर है। तो मैं उसको समझाने के लिए बोल रही थी, फिर शी केम अप विद दिस एग्जांपल कि हाँ यार, ऐसा मैंने देखा है एक बार कि वैसे वो ब्रेड खराब हो जाती थी, बट मेरे हस्बैंड लाने के बाद इतना प्यार दे रहे थे, ये बहुत ही अच्छी है, ये ब्रेड बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मजेदार है खाने के अंदर। वो ब्रेड पूरे हफ्ते तक बिगड़ी नहीं थी, उसमें कोई फंगस कुछ नहीं लगा था वो ब्रेड के अंदर। यानी हमारे थॉट्स में, हमारे वर्ड्स में कितना पावर है। जस्ट
ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना जबरदस्त पावर होता है हमारे वर्ड्स के अंदर, हमारे थॉट्स के अंदर. सो लेट्स रीड फर्दर. वृक्ष में एक अनुभूति होती है जो आपका प्रेम महसूस करती है और उस पर प्रतिक्रिया करती है. वृक्ष हमारे तरीके से प्रतिक्रिया करती है या अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता. हम अब तक इसके इजहार के तरीके को समझ नहीं पाए हैं. एक सेकंड. वृक्ष में एक अनुभूति होती है जो आपका प्रेम महसूस करती है. अनुभूति जो होती है वो आपका प्रेम महसूस करती है और उस पर प्रतिक्रिया करती है, यानी रिएक्शन करता है. वृक्ष हमारे तरीके से प्रतिक्रिया करती या अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता. यानी कि वो जैसे हम करते हैं, अपना एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन देके हम उसको खुशी व्यक्त करते हैं. वृक्ष यानी कि जो ट्रीज होते वैसे नहीं करते, बट उनके अंदर जब आप ट्री को बहुत प्यार करने लगते हो, एक तरह का अलग ही एहसास होता है वो ट्री के पास जाने के बाद. ये 1 साल से मेरे बाहर का, जो मेरे घर के बिल्कुल बाहर का वो ट्री है, हमारा नहीं है एक्चुअली, बाजू वालों का है, उनके दायरे में आता है. बट वो ट्री को मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत हक करती हूँ. तो वो ट्री के पास जाके कभी भी कुछ भी नेगेटिव होता है, मान लो आज मेरे साथ कुछ बहुत खराब हुआ, बहुत नेगेटिव हुआ, जिसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अंदर से बहुत सैड हूं मैं, पता नहीं क्या जादू होता है, वो ट्री को जाके हक करती हूँ, सारी नेगेटिविटी जैसे डिसॉल्व हो जाती है. तो इसी तरह से वृक्ष यानी कि ट्री आपके सारे प्रेम को महसूस कर सकता है. वो एक्चुअली वो आपके जैसे भले प्रतिक्रिया नहीं करता, उसके इजहार के तरीके को हम नहीं समझ पाते, बट वो महसूस कर सकते हो आप. मैं करती हूँ, मैं महसूस करती हूँ कैसे वो मेरी नेगेटिविटी को ले लेता है. कभी कभी उसको जाके मैं अपनी बातें बताती हूँ, देखा जाए ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मैं ऐसे शेयर भी करती हूँ उसको हक करते हुए. इतना थैंक्स करती हूँ, थैंक यू मुझे इतना सारा ऑक्सीजन देने के लिए, थैंक यू मुझे इतना अच्छा जीवन देने के लिए, थैंक यू मेरी हमेशा नेगेटिविटीज को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने के लिए, थैंक यू सो मच. जितना थैंक्स करती जाती हूँ, आंखों में आंसू होते हैं कभी कभी उसको हक करते हुए, और मैं महसूस करती हूँ कि मेरी सारी, मेरे अंदर की जो भी चीजें थी वो चली गई. एंड आई एम अगेन, वो ट्री ने मुझे इतना प्यार दिया कि आई एम अगेन इन एन हाई फ्रिक्वेंसी जोन. अभी ये बोलते बोलते भी मेरे अंदर एक एक वाइब्रेशन हो रहा है, लाइक आंख में वो पानी आ रहा है वो बोलते बोलते, कि वो वृक्ष मुझे इतना प्यार देता है. सो ये प्रेंटिस मलफोर्ड ने बोला था, जो नव विचारवादी लेखक है. तो लेट्स रीड फर्दर. हो सकता है आपको इस बात पर विश्वास हो कि जिसे आप देख सकते हैं वही वास्तविक संसार है, और जिसे आप देख नहीं सकते वह वास्तविक नहीं है. देखिए, यह आपका भ्रम है. आपको किसी चीज का जो रंग दिखाई देता है वह दरअसल इसका वास्तविक रंग नहीं होता. हर चीज अपने में सम्मिलित सारे रंगों को सोख लेती है और उस रंग को परावर्तित करती है जो इसमें नहीं होता. यानी हम उसके परावर्तित किए हुए रंग को ही देख सकते और उसे ही सच मान बैठते हैं, जबकि यह सच नहीं होता है. इसका अर्थ है कि वास्तव में आसमान में नीले के अलावा बाकी हर रंग होता है. हाँ, ये तो हम साइंस में पढ़ के आए हैं कि हम जो रंग देखते हैं वो एक्चुअली जो विजिबल लाइट होती है, वो सारे रंगों को, वो चीज जो जिसके ऊपर वो रंग हमें दिख रहा है, वो दूसरे सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमें ये कलर दिख रहा है. राइट? ये तो हम फिजिक्स में पढ़ते हुए आए हैं. तो यानी जो भी चीजें हमें जो वास्तविक में एक्चुअली दिख रही है वो सच नहीं होती है. यानी मान लो अभी मुझे ये जो मेरा है इसका पिंक कलर दिख रहा है. पिंक इसलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि ये सारे दूसरे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए उसके ऊपर से पिंक कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो ऐसे ही सारी चीजें कुछ भी वास्तविक नहीं है जो हम समझ के बैठे हैं. सो लेट्स रीड फर्दर. आपकी कई आवाजें इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसीज आपको सुनने की क्षमता से परे होती है. आप उन्हें सुन नहीं सकते लेकिन वे वास्तविक हैं.
आप अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज हमारी आंखों के देखने की क्षमता से परे होती है, लेकिन वे वास्तविक हैं। यदि आप प्रकाश की सभी ज्ञात फ्रीक्वेंसीज को माउंट एवरेस्ट के आकार की मान लें तो आपके द्वारा देखी जा सकने वाली फ्रीक्वेंसीज गोल्फ की गेंद से भी छोटी होती है। माय गॉड, सो माउंट एवरेस्ट के आकार की मान ले अगर, तो हमें जो दिख रही है वो खाली छोटी सी गोल्फ का जो छोटा सा बॉल होता है ना, वैसी दिख रही है एक्चुअली हमें। यानी हमारा जो संसार है छोटा सा, यानी हमें जो दिख रहा है वो एक्चुअल में उससे तो ये जो पैरेलल रियलिटी से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है जो हमें दिख रहा है उसके सामने। तो यहाँ पे एक और चीज, हमें जो कुछ कुछ साउंड्स जो सुनाई देते हैं एक्चुअली, ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि कुछ कुछ साउंड है जो बच्चे सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। यानी कि 7 साल तक या 9 साल तक या 11 इयर्स तक बच्चों को कोई कोई फ्रीक्वेंसी होती है वो जो उनको ही सुनाई देती है, वो साउंड हमें नहीं सुनाई दे। मैं ये वाला तो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है अपनी बेटी के साथ। उसको एक हाई पिच का साउंड सुनाई दे रहा था, मुझे नहीं सुनाई दे रहा था। आई एक्सपेरिमेंटेड दिस। फिर उसके बाद में पता चला कि कितनी सारी चीजें जो हम समझ रहे वो एक्चुअल में रियल है ही नहीं। आपको किसी को पता है ये चीज के बारे में कि 7 साल तक या कुछ कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो बच्चों को ही खाली सुनाई देते, जो एडल्टहुड में नहीं सुनाई देते? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? टेल मी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। एनीबडी नोज दैट? मैंने ये सुना है, मैंने भी इसको सुना है। What is doing? हाँ जी, मैम एक्चुअली उनका 7 हर्ट्ज पर सेकंड कुछ होता है, तो उस Yes. पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में जो साउंड किसी न किसी को साउंड को ऑडियो वो सुनाई देता है। यस। जब हम मेडिटेशन में बैठते तभी हमें ये आवाज वगैरह सुनाई देते हैं ना, जैसे ऑडियो क्लेयरवॉयंस हो गया, वो हो जाता। हम अगर हम उस पर्टिकुलर लेवल में जाएगा तो हमें भी सुनाई देगा। यस, एग्जैक्टली। आज मैं लाइव करना भूल गई थी, अभी मुझे याद आया। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट रिकॉर्डिंग हो रही है। सो एनीवेज, तो एग्जैक्टली यही होता है, जो फ्रिक्वेंसीज अलग अलग होती है। तो ये क्लेयरवॉयंस में लोगों को जो चीजें कुछ कुछ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वो फ्रिक्वेंसी में लेके गए हैं, इसलिए उनको वो चीजें दिखाई या सुनाई देती है। सेम हम मेडिटेशन में हमें कुछ हम कहते हैं ना कि साउंड ऑफ साइलेंस को सुनो, यानी जब कंप्लीटली अपने आप को स्टिल कर लो ताकि हम कुछ कुछ और साउंड सुन पाए। ऐसा बोला जाता है कि अलग अलग प्रकार के साउंड होते हैं, अगर हमने वो सारे साउंड सुन लिए तो हम धीरे 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 वो फ्रीक्वेंसी में जाने लगते हैं। तो एग्जैक्टली व्हाट पुष्पलता जी सेड इज ट्रू। यानी इसीलिए हर किसी को कुछ कुछ चीजें नहीं सुनाई दे रही है। और ये बच्चों के लिए तो ये बहुत ही एक कौन सा एक प्रोग्राम आता था नेटफ्लिक्स के ऊपर आता था, ब्रेन पावर या ऐसे ब्रेन गेम्स, यस ब्रेन गेम्स करके एक प्रोग्राम है। अगर आपको देखना है तो यू कैन गो ऑन नेटफ्लिक्स एंड राइट डाउन ब्रेन गेम्स। वहां पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था साउंड वाला। बहुत कुछ है ब्रेन गेम के अंदर जो मैनिफेस्टेशन के साथ आपको लगेगा कि हाउ अमेजिंग इज दैट। वो साइंस में वो पूरा करता है कि हैप्पी। हाँ जी, नहीं, नेटफ्लिक्स में एक स्ट्रेंजर थिंग्स बोल के भी एक वो सीरीज आया था। जैसे मैंने उसका फर्स्ट सीरीज देखा था, वो शायद पैरेलल यूनिवर्स के बारे में ही बता रहा था। उस समय तो ये सब इतना नहीं पढ़ते थे, 3-4 साल पहले का बात है, 3 साल। तो मैंने पार्ट 2 नहीं देखा, बट मैंने आई वुड लव टू सी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। हाँ, बट ब्रेन गेम पार्ट 2 भी आ गया है और पार्ट 3 भी आ गया है। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिखाया है उसमें पैरेलल यूनिवर्स का। वाओ, तो कौन सा है? स्ट्रेंजर थिंग्स। आई विल राइट इट डाउन। व्हाट इज द नेम? स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। सो यस, ऐसे ही होता है। ब्रेन गेम्स भी आप देखोगे तो आपको उसमें बहुत कुछ पता चलता है, हाउ ऑल दिस थिंग्स वर्क।
जो हमें हमें वास्तविक में पता ही नहीं वास्तविकता क्या है उसकी। एक ब्रेक थ्रू मूवी करके भी आई थी, तो ब्रेक थ्रू ब्रेक थ्रू और ब्रेकिंग बैड। ब्रेक थ्रू ओके ओके नेटफ्लिक्स Will के watch. ऊपर ही शायद है, नहीं नेटफ्लिक्स पे नहीं है, वो डिज्नी हॉटस्टार में थी। बट लेट मी राइट दिस डाउन जस्ट अ सेकंड, बिकॉज स्ट्रेंजर थिंग्स किस पे है? नेटफ्लिक्स पे है। Netflix. ओके ओके, सो या लेट्स रीड फर्दर। तो यानी पैरेलल रियलिटीज चलती रहती है, तो हमें जो दिखता है वो एक्चुअल में वास्तविक नहीं है, वास्तविकता में तो कुछ और ही चल रहा है। सो लेट्स रीड। शायद आपको यह विश्वास हो कि वास्तविक संसार ठोस चीजों से बना हुआ है जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, लेकिन दरअसल कुछ भी ठोस नहीं है। आप इस वक्त जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वह गतिशील ऊर्जा की शक्ति है और उसका अधिकांश हिस्सा खाली स्थान है। अब बताएं आपकी कुर्सी कितनी वास्तविक है? यानी ये बुद्धिमान कुर्सी पे मैं बैठी हूँ, बट ये कुर्सी वास्तविक नहीं है। बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग इट, दैट्स व्हाई इट एग्जिस्ट। हमने आगे पढ़ा ना कि हम ऑब्जर्व करते हैं तो संसार का निर्माण हुआ है। कहीं ना कहीं किसी ने ऑब्जर्व किया है, तब जाके सालों बाद भी हो सकता है, सालों बाद ही उसका शायद निर्माण हुआ हो। बट ये हमने कल ही पढ़ा था इंग्लिश में भी, और आज भी हमने पढ़ा वो कि हम जो चीज समझ रहे हैं वैसा नहीं होता है। इनफैक्ट यानी हम जो ऑब्जर्व करते हैं, किसी ने हमारी सचेतनेस में यानी हमारी अवेयरनेस में जो भी चीज आती है वो अपने आप निर्माण उसका होता जा रहा है, क्रिएशन होता जा रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल भ्रम है, इसलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता और दुख से बच जाता है। तो जितना ये हम समझ लेंगे कि ये सारा ही इल्यूजन है, भ्रम है, तो हम फिर उसको इतना सीरियसली लेंगे ही नहीं। यानी कि मान लो आपका झगड़ा हो गया आपके हस्बैंड के साथ, कितना वास्तविक है वो, बहुत सारा वो चीजें भ्रम है एक्चुअली। तो तुरंत ही आप वो सीरियस लोगे ही नहीं उसको इतना, कि ये तो सारा इल्यूजिव जीवन चल रहा है। मान लो पैसे नहीं है अभी आपके पास, पैसे के बारे में आप बहुत चिंता कर रहे हो, बट एक्चुअल में तो वो ये पूरा भ्रम, ये जो संसार है वो तो खुद ही इल्यूजन है। इतना हम तो ऐसे सीरियसली ले लेते कि पता नहीं क्या हो जाएगा कल के दिन में या फ्यूचर में क्या हो जाएगा, हम इतना सीरियसली लेते, बट एवरीथिंग इज एन इल्यूजन ऑन दिस प्लैनेट। हमें दिख रहा है जो एक्चुअली वास्तविकता में है ही नहीं। तो फिर जब हम ये समझ जाते, क्यों हम अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इतना सीरियसली ना ले चीजों को, और फॉरगिव एंड फॉरगिव करके आगे बढ़ते जाएं। इसलिए हमें उसको भ्रम की तरह ही देखना है, और काफी दुखों से हम बच जाएंगे। कभी कभी किसी एक दुख को लेके आप कितने दिन अपने बर्बाद कर लेते हो, वो किसके लिए? इल्यूजिव जीवन के लिए, जहां पे हर चीज इल्यूजन है। यानी इवन ये कुर्सी भी सच नहीं है, जहां पे सॉलिड मुझे दिख रही है, मैं बैठी हूँ सॉलिड है, बट बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग इट, दैट्स व्हाई दिस चेयर एग्जिस्ट। और एवरीथिंग इज एनर्जी। सॉलिड इसलिए है क्योंकि वहां पे वो गट्ठा है मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स का, बट वैसे हर एक चीज एनर्जी है। बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग इट, इट एग्जिस्ट। ये गौतम बुद्ध ने बोला है, हम यहीं पे उसको समाप्त करते हैं। अभी किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, एंड देन वी जस्ट कंक्लूड द सेशन टुडे। मुझे वेरी theory डेप्थ करनी है टॉपिक्स थे basically। मैम आज तो। यस, इट अब इज मुझे हाईली ये इन डेप्थ। एक्सेस का अर्जुन थोड़ा यस मैम। आउट ऑफ हेड जा रहा है। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाले में थोड़ा टाइम लगेगा, माने कन्विंस, अपने आप को ही कन्विंस कर देना। Yes, yes. Yes, I know it is not an easy concept to understand. Yes, ma'am.
Alefia ma'am, I am also having the doubt in this. Like you told, no space and all. It's just means we people have created, or human beings are created. But if whatever, like 5 years of age, what happened? We are remembering everything. But people used to say, no, don't be there in your past. Move on, move forward. So, but हमेशा ये possible नहीं है. मतलब पास्ट में से मूव ऑन करना, दैट्स व्हाट यू सेइंग? हाँ, yeah, that's what. यानी ना? कि देखो, पास्ट में हमारे कैसी दो टाइप की मेमोरीज है, कुछ हाँ. कुछ दुख वाली मेमोरीज है, हाँ. कुछ कुछ सुखी वाली मेमोरीज भी है, राइट? जिसको कुछ गायब भी हो गई है ना, हाँ भुला गायब भी गए हैं। यस, कुछ भूल भी गए, राइट राइट। बिल्कुल। एक्चुअली वो हमने भूलना चुना है, बट वो है तो वहीं पे सबकॉन्शियस के अंदर तो सब है। वो तो हम माइंड से सोच के बैठे कि हम सारा भूल गए कुछ कुछ चीजें, बट वो सबकॉन्शियस के अंदर रहती है। एंड अलिफिया, चीज actually, Alufia, I'll just tell one thing. There is subconscious mind, and then beneath that there is an unconscious mind. और वहां पे जब चीजें जाती है ना, वो फिर जन्मों जन्मों तक रहती है। वो एक्सेसिबल नहीं होता है किसी को। बहुत ही प्रोटेक्टिव फिनोमिना है वो ब्रेन का। So what I am understanding from this chapter is that जो भी मेमोरीज में स्टोर है ना, जो भी हम जीते हैं, इट इज ऑल स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो वो तो फिर हमारा सोल में जाता है ना, सोल लेवल पे होता है ये सब, जैसे हमें पता सबकॉन्शियस है। लेवल पे। हाँ, तो अभी जैसे कि हमने ये रिलीज नहीं किया, मानो मैंने वो एक एग्जांपल दिया था ना, वो लेडी का जिसको 4000 साल पहले वो चली गई थी, जो उसको थ्रोट का प्रॉब्लम था, घुटन होती थी उसको, और हिप्नोसिस में उसका जैसे बाहर आया। तो वैसे ही जो भी मतलब ये व्हाट आई अंडरस्टैंड दिस ऑथर इज टेलिंग कि सारी चीजें हमारे साथ में है, बिकॉज एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। कुछ Yes. चीजें हमें याद है कि उसका अपने को एक्सेस है, कॉन्शियस माइंड को एक्सेस है, लेकिन जरूरी नहीं जो कॉन्शियस माइंड जानता है वो उतना ही सच है। क्योंकि एग्जैक्टली। सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में तो कितना जन्मों जन्मों का कोडिंग पड़ा हुआ है अंदर। तो मेरे ख्याल से वो कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं कि देयर इज नो टाइम, एवरीथिंग इज नाउ। कोई भी कॉन्सेप्ट में, बट टाइम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं एक्चुअल में। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। यानी मान लो हम 4000 साल देते हैं या फिर मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, ऐसा बोल मतलब जो भी हम बोलते हैं, बट एवरीथिंग इज प्रेजेंट मोमेंट। हमने उसको 4000 साल का टाइम दिया हुआ है, मतलब जो भी हमने उसको लेबल किया यहाँ पे हुआ तो है। प्रेजेंट को भी बोलता है कि इट ओनली एग्जिस्ट बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग इट। यस यस। तो भले हमने उसको लेबल दिया है 4000 साल पहले का, या 500 साल पहले का, या 1 लाख साल पहले का, हमने उसको टाइम का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड ने दिया हुआ है। बट तो मैम अभी भी डायनासोर्स होंगे फिर? प्रेजेंट मोमेंट। अभी भी डायनासोर्स होंगे कहीं ना कहीं फिर? I was about to ask this, ma'am. There are so many number of lives we have spent Yes. in the last. यस। तो यानी डायनासोर आके चले गए, वो सब कुछ प्रेजेंट मोमेंट में हुआ है, बट हम अभी उसको पास्ट की तरह देख रहे हैं। यस। तो ये कॉन्सेप्ट ग्रेटेस्ट सीक्रेट में बहुत डीपली समझाया गया है। आई वुड लाइक यू टू जस्ट स्टे हियर एंड अंडरस्टैंड के इतना ही समझ लोगे, अभी की लाइफ के लिए इतना ही समझ लोगे कि वास्तविक पैरालिटी आई मीन हमें जो दिख रहा है उससे भी कहीं ज्यादा है ये पूरा प्लैनेट या पूरा संसार, उससे भी कई गुना बढ़ के है। जैसे भाविनी ने बताया कि एवरीथिंग इज एन ऑलरेडी स्टोर्ड इन सबकॉन्शियस। हमारा कॉन्शियस माइंड जितना प्रोसेस कर पाता है उतना ही हम देख पा रहे हैं, बट एक्चुअली पैरेलल रियलिटीज ऑलरेडी हैपनिंग हमारे आसपास ही। तो इतना ही खाली समझ लेते तो भी हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर हम ये समझ पाते हैं कि पैरेलल अगर रियलिटीज है, तो हम क्यों इतना सीरियस ले रहे हैं सारी चीजों को हमारी लाइफ में। इतना थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं कि हम कितने पावरफुल है। हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस माइंड, एवरीथिंग इज सो पावरफुल। और होपोनोपोनो की टेक्निक से हम क्या करते हैं कि सबकॉन्शियस के अंदर जो बैड मेमोरीज है
उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं. सबकॉन्शियस is our soul, right? And then super conscious level is there. सुपर कॉन्शियस के अंदर कोई मेमोरी नहीं है. सबकॉन्शियस के अंदर सारी मेमोरीज है, सुपर कॉन्शियस के अंदर कोई मेमोरी नहीं है. सो व्हाट वी डू इज जनरली सुपर कॉन्शियस को हम उसके साथ कनेक्ट होके हम बोलते हैं कि भाई मेरे सबकॉन्शियस के अंदर ये मेमोरीज है जो अभी प्ले आउट हो रही है आउटर वर्ल्ड के अंदर, विच आई वांट टू करेक्ट. एंड दैट्स व्हाई वी से आई प्लीज फॉरगिव मी, यानी अपनी खुद से ही माफी मांगना, खुद को माफ करना. यानी सुपर कॉन्शियस से हम बोलते हैं कि आई प्लीज फॉरगिव मी. ओके, एंड दैट्स हाउ द मेमोरीज जो धीरे 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 अभी कुछ कुछ चीजें हमारी लाइफ में से सबकॉन्शियस में से बिल्कुल रिलीज हो जाती है. जब हम कहते हैं होपोनोपोनो की टेक्निक करते हैं या जो भी, हम जैसे ही अवेयरनेस में आके कनेक्ट होते तो हम वो जो हमारे अंदर सबकॉन्शियस के अंदर जो मेमोरीज, ऐसी मेमोरीज इमोशनल जिसके साथ अटैच्ड है चीजें, उसको हम रिलीज करते जाते हैं. इमोशंस को जैसे जैसे हम उसको करेक्ट करते हैं वैसे ही हम सुपर कॉन्शियस की तरफ और आगे बढ़ते जाते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? तो ये सारा ही इतना डीप है, बट हमें अभी जितनी जरूरत है इतना हम समझ लेते हैं. धीरे 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 खुद अपने आप को ये सारी चीजें रिवील करती है. राइट, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. अभी भी किसी को कुछ शेयरिंग या क्वेश्चन है तो यू कैन स्टिल आस्क. स्टिल हैव 2-3 मिनट. Alexia ma'am, हाँ जी. one more thing. Actually, today, my Bua, she expired in the morning. So when you were saying, because I cannot go, last year when I met her. So today when you were explaining about hugging the trees, actually me and my Bua, we used to sit on the tree, and I was in tension. That's why, that it never came into my mind. Only just now when you told her hugging the tree, then I was remembering we both were doing together like that, knowingly. That time we were not knowing this is tree hugging or something, but then I thought the memory, it was, even though it was a past memory, maybe around 45 years before, but still it's there. I didn't remember. Just now when you were saying that time only I remembered. Yes. So that I was just saying, subconscious revealed that memory. Yes. मैं शेयरिंग करूं अल्फिया? हाँ बोलिए. एक तो मतलब अभी आप जो बता रहे थे ना कड़ी पत्ते के बारे में. हाँ जी बोलिए. तो मैं ना, मेरा माइंड चल रहा था, मेरे घर में कड़ी पत्ते का बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है. तो मैं ये सोच रही थी कि हम कितनी छोटी, आप वहां पे खरीद के कड़ी पत्ता यूज कर रहे हैं, और हम कैसे ही छोटी छोटी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते ना, गए तोड़ा यूज किया खत्म. मतलब कभी इमेजिन ही नहीं हुआ, सोचा भी नहीं ना कि कितनी बड़ी वो मतलब नियामत है ये भी, कि हमारे मेरे पास घर में है और मैं तोड़ के उसको यूज कर ले रही हूँ. आप जब शेयर कर रहे थे ना तो मेरे माइंड में वही चीज चली थी, हम छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेकर निकल जाते हैं ना. एक छोटी से छोटी चीज नियामत है हमारी लाइफ में. मतलब अब आपके लिए कड़ी पत्ता, अगर बाई चांस आप एक एग्जांपल सांबर बनाने जा रहे हो और आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है, तो आपको फॉरेन स्टोर जाना है, सब कुछ करना, तो आप बनाओगे. और हमने को तो कोई भी सब्जी में ऐसे भी मूड करता तो जाते हैं, कड़ी पत्ता तोड़ते हैं और लाके डाल देते हैं, कभी ऐसे सोचना ही नहीं है. तो अभी जब आप बोल रहे, जब तक हमारे यहाँ पे इंडियन स्टोर नहीं था, हम जहाँ पे रहते हैं, तो हमें ½ एन आवर ड्राइव करके जाना पड़ता है कड़ी पत्ता लेने के लिए. तो मतलब मैं आप जब बोल रहे थे तो मेरा माइंड यही चल रहा था, कितनी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको हम थैंक यू बोल सकते हैं. यस डेफिनेटली. कल मेरे माइंड में एकदम से आया ये जो मनी का चल रहा है, तो आई एम ऑलवेज थिंकिंग एंड थैंकिंग मनी ईच छोटी छोटी चीज के लिए. तो कल मेरे माइंड में आया कि मैं जब जॉब पे थी तो वहां पे मैं पानी पूरा दिन पीती रहती हूँ. कल मेरे माइंड में इतना ग्रेटिट्यूड निकला कि यार मेरी जो कंपनी है ऑफ कोर्स पानी का बिल भरती है, राइट. तो वो पानी के लिए शुक्रिया, मेरी कंपनी के लिए शुक्रिया कि वो पानी का बिल पे करती है, और हम लोग यहाँ पे ऐसे ही पानी पीते रहते हैं. तो यू नो कितनी बड़ी बात है. यानी ये डीप लेवल पे अगर सोचने जाऊं तो कितनी नियामत है, ये बड़ी नियामत है. हम तो हमें लगता है कि पानी तो ऐसे ही फ्री में तो है,
हमें ऐसे ही लगता बिल्कुल। है। आजकल पार्टी में जो बॉटल चलने लगा है मैम, लोग थोड़ा सा पीते हैं, बॉटल छोड़ देते हैं। वो देख के बहुत तकलीफ होती है कि कितना मतलब आदमी पानी पानी खरीद के पी रहा है और लोग एक घुट पिया फिर बॉटल छोड़ देते हैं। पर लगता है कि कई पानी लोग का बॉटल साथ ले बहुत जाते तकलीफ हैं होती है। अंजलि जी, कई हाँ? लोग बॉटल साथ ले जाते हाँ, हैं। बट जो हमें लोग वहाँ जानते पे हैं उसकी नेगेटिव वैल्यू फीलिंग्स जानते हैं वो नहीं ले देनी जाते हैं, है लेकिन अंजलि आप जी। बॉटल में आधे टोट में सेफ है। देखिएगा मैम कि पानी का बॉटल छोड़ा रहता है, आधा आधा पी, थोड़ा थोड़ा पी के भी छोड़ दिया जाता है। हाँ बहुत वो तो तकलीफ है, है। लेकिन ग्लास में अगर किसी को पानी दियो वो भी ऐसा ही होता है, थोड़ा पी के छोड़ देते हैं, बॉटल फिर भी ले जाते हैं कितने लोग। हम तो ले वो आते लोग ले हैं, जाते मुझे हैं, नहीं लेकिन अच्छा कितने लोग, लगता। हम लोग तो उठा लेते हैं, Even I लेकिन carry बहुत लोगों back. को देखिएगा छोड़ देते हैं। यस यस। हाँ बट एक वो बात पे आपको करते याद हैं रखनी है अंजलि जी, कभी भी कुछ भी हमें नेगेटिव फीलिंग नहीं देनी है। पानी देख के Yes. हमें ऐसा नहीं सोचना है कि यार लोग कैसे छोड़ के चले जाते, नहीं। हमें उसमें भी एबंडेंस, कि पानी तो एबंडेंस में है, यूनिवर्स में किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये ऑफ कोर्स वेस्ट नहीं करना है, आई एम नॉट सेइंग कि वेस्ट आप करो, बट किसी और को देख के हमें नेगेटिव फीलिंग्स वहां पे नहीं देनी है। ओके, दैट अच्छा, should be एक always मेरी clear. शेयरिंग थी, ये तो कड़ी मतलब मेरा फीलिंग था कि जब अभी आप बता रहे थे, जो आप प्लांट्स की बात कर रहे थे ना, वो प्रैक्टिकली जैसे कि जब मेरे हस्बैंड पौधों को पानी देते हैं और जब मैं पौधों को पानी देती हूँ, तो प्लांट्स का डिफरेंस दिखता है। या जैसे मैं अगर 2-3 दिन अपने पौधों के पास छत पे नहीं जा पाई किसी रीजन से, तो वो ना जब मैं जाती हूँ तो मुझे फर्क दिखता है। जब मैं थोड़ी देर बाद टहलती हूँ, पौधों को छूती हूँ, उसके बाद ऐसा लगता है जैसे वो मुझे वेलकम कर रहे हैं। वाह, क्योंकि इतने सालों का कनेक्शन है उनके साथ। हाँ वही मतलब वो तो एक और बताना था कि जैसे अभी फल नहीं आया, मेरे पास कस्टर्ड एप्पल था जिसको हम लोग शरीफा कहते हैं। उसका पेड़ अपने आप से निकला था, तो सबने कहा निकाल दो, ये फल नहीं देगा। मैंने उसको लगाए रखा, मैंने कहा नहीं, वो पेड़ बहुत सुंदर है, मैं उसको नहीं हटा रही, अपने आप निकला। और अभी मैं उसको 1-1.5 साल से अब तुमको फल देना है, अब तुमको फल देना है, ऐसे में तो तब मुझे ये सब नहीं मालूम था, ग्रेटिट्यूड तो ये सब नहीं मालूम था, तब से मैं उसको बोल रही हूँ। और अभी उसपे बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, फल नहीं दिखे लेकिन फूल दिख रहे हैं। फर्स्ट टाइम फूल आए। How nice. Thank you for sharing. Thank you. Yes, everything is responding to our love. In short, each and everything is responding to our love. जो मैंने उस दिन बताया कि आपका मान लो वॉशिंग मशीन को कितना प्यार देते हो, उस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। भले वो निर्जीव दिख रहा है, बट उसके अंदर जान है, उसके अंदर भी वही एनर्जी है। जैसे मैं, मेरा फोन है, उसको इतना प्यार देती हूँ, 50,000 बार गिरा होगा अभी तक, बट मैं इसको इतना प्यार देती हूँ, इतना प्यार देती हूँ। वो 3 साल से मेरे साथ इतना मजेदार तरीके से काम करता है। उस दिन मुझे पता चला कि हमारे जॉब के अंदर अभी जो वाईफाई है, मेरा ये थोड़ा सा पुराना मॉडल है, पुराना इन द सेंस कि ये S10 है मेरा, ये जो फोन है। उस टाइम पे 2-3 साल पहले तो नया ही आया था, तब जब लिया था तब, बट अभी पुराना मॉडल हो चुका है। ओके, बट तो उस दिन जॉब पे पता चला कि अभी हम लोग वाईफाई खाली आईफोन वाले लोग ही एक्सेस कर पाएंगे, हमारा हॉस्पिटल का वाईफाई, दूसरे एंड्रॉइड वाले नहीं कर पाएंगे। कुछ इश्यू आ रहा था आईटी के अंदर रिलेटेड टू सिक्योरिटी। एनीवेज, तो मैं तो इतना खुश हुई इस दिन कि मेरा थोड़ा सा पुराना है, S10 वाला मॉडल है, इसलिए मैं वाईफाई अभी भी वो एक्सेस कर पाती हूँ हॉस्पिटल में, बिकॉज इवन दो आई हैव एंड्रॉइड फोन, तो भी मैं कर पा रही हूँ। मेरे पास आई लाइक एंड्रॉइड फोन्स बेटर, सैमसंग आई लाइक बेटर। और हम लोग हमारे घर में सबके पास यही फोन होता है, सबके पास यही सिमिलर वे में फोन दिखेगा। तो वी ऑल जस्ट लव व्हाटएवर, आई मीन हम इतना जितना प्यार देते रहते हैं, वही चीज हमें इतना ही सब कुछ देती है। अब इसके अंदर इतनी सारी मेमोरी है, मेरे अंदर इतनी सारी चीजें पड़ी होती है, तो भी वो अपने हिसाब से बहुत अच्छे से मुझे जो भी मुझे चाहिए करने के लिए सब कुछ करता है। बट क्योंकि आप जिस चीज को जितनी एनर्जी प्यार की देंगे, वो आपके साथ उस तरह से पेश आएगा। यानी उस दिन मेरी कलीग ने मुझे बोला कि देख अलिफिया, ये मेरा वाईफाई काम नहीं करता है, तो मैं क्या करूं। मैंने बोला चलो देखते हैं, हम ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने सब कुछ किया उसके फोन पे उसको वाईफाई कनेक्ट करवाने के लिए,
मेरी कलीग है। तो हमने बहुत ट्राई किया, नहीं हो रहा था। यानी जो मैक आईडी बदला, फिर ये बदला, वो बदला, उसका पासवर्ड डालना पड़ता है तो पासवर्ड डाला, सब कुछ हमने किया, बट वी कुड नॉट एक्सेस ULH प्रोवाइडर नेटवर्क। यानी ULH इज माय हॉस्पिटल्स नेम, यूनिवर्सिटी ऑफ लुइविल हॉस्पिटल उसका नाम है। तो इसके हम लोगों ने ट्राई किया, देन व्हाट हैपेंड, मैंने उसको बोला लेट मी कॉल IT, क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज मेरे फोन में तो चल रहा है, आपके फोन में क्यों नहीं चल रहा है, लेट मी आस्क। तो शी हैड अ न्यूएस्ट वर्जन ऑफ एनी गूगल मोबाइल, आई डोंट नो, बट फिर हमें पता चला, मतलब मैंने IT में फोन किया, हमारा जो यूनिवर्सिटी का आई मीन हॉस्पिटल का IT है, वहां से फिर पता चला कि नहीं, जो न्यूएस्ट मॉडल आए हैं एंड्रॉइड के, अभी स्पेशली हमारे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी में जो भी है, उसकी वजह से हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ओनली आईफोन कैन एक्सेस। मेरा वाईफाई चल रहा है, मैंने पूछा भाई मेरा तो सैमसंग है, मेरा क्यों चल रहा है? उसने बोला आपका शायद पहले का कोई एंड्रॉइड का वर्जन होगा। मैंने बोला हाँ यस, मेरा तो पुराना वाला वर्जन है। मैं तो इतना खुश हो गई कि चलो भाई मेरा Blessing in disguise. एनीवेज, यहाँ पे ये सारी बताने का वही कि जितना प्यार हम देते, वही चीज हमसे वो चिपक के रहती है, खुशी देती है, सब कुछ देती है वो चीज, यू नो। सो जितना हो सके आज आपको पूरे दिन में सारी चीजों को जितना हो सके प्यार देना है, और लिस्ट बनाना है माइंड के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पसंद है, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, ठीक है? सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। Thank you, मैम मेरे को एक ma'am. क्वेश्चन करना था खाली, Ma'am. छोटा सा। बोलो, चलो अभी लेट हो रहा है, बट ओके चलो बोलो। एक मिनट, कल जैसे मेरा बेटा कई बार गिर जाता है जमीन पे, तो और जितने जन घर पे रहते हैं ना वो बोलेंगे मारो मारो मारो, मतलब तुमको गिरा दिया। और मेरा बेटा मेरे सामने गिरा तो मैंने रूम में उसको बोला नहीं, बोलो थैंक यू मदर अर्थ, आपने मेरे को बचा लिया। तो मतलब तो मेरे को That's यही good. समझ में नहीं आता मैं उसको क्या समझाऊं, मतलब अभी तो छोटा है, मारो मारो से समझ रहा है क्योंकि सबको एक्शन करके दिखाते हैं मारो मारो जमीन को। अब उसको मैं कैसे वो करूं, उसको चेंज करूं? बस आपने हो जो किया जाएगा अपने वही करना है, वही। भले कोई भी। Okay. माँ का असर बहुत होता है बच्चे के ऊपर हमेशा, सबसे Okay. ज्यादा सीखेगा वो माँ से सीखेगा। ओके ठीक है। तो ठीक है जो वही। और कोई कुछ भी करता है, आपको उसको बोलना है थैंक यू मदर अर्थ, कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। हाँ मैंने यही बोला, आपने मुझे बचा लिया। यस, परफेक्ट। ओके, थैंक यू, लव लाइट Thank इन you, अबंडेंस। ma'am. Thank you, अभी love मैं light and रिकॉर्डिंग abundance. अपलोड करके फिर डालती हूँ, Love you all. लव यू। Thank you. आज लाइव करना Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू। लव लाइट इन अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। Bye, ma'am.